Hi, and welcome to The Code. Construction design and engineering is also a big part of where we discuss basic elements of every building or even an ecosystem. Ecosystem की बात कर रहे हैं तो swimming pools is something that is all and very dear to most of us. मैं अगर पर्सनल तौर से बात करूं तो मेरी बचपन की बहुत सुंदर यादें हैं स्विमिंग पूल से. Something that started out as a communal bath now has become a lifestyle for many. It is also a profession for some. There are multiple uses of a swimming pool, especially in a modern society. But कभी सोचा है कि स्विमिंग पूल बनता कैसे है? कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर लगते हैं? क्या फीचर्स होते हैं? What is the difference between different type of swimming pools? इन्फिनिटी पूल क्या होता है? किस तरीके से किसी पूल का डिज़ाइन बना के उसको एग्जीक्यूट किया जाता है? क्या सिर्फ वाटर प्रूफिंग करने से पानी खड़ा हो जाता है स्विमिंग पूल के अंदर, या उसकी टेक्निकलिटीज़ डिफरेंट होती हैं? ऑल दीज आंसर्स आर गोइंग टू बी फाउंड टुडे इन दिस एपिसोड with Mr. Gyanendra Tevatia. He is here with us and he is somebody who's an expert, not just because he builds swimming pools, but because he's also a sports person. He understands the value of sports and he's also been somebody deeply associated with the education sector. So I hope you guys are going to enjoy this conversation with Gyanendra, and I think if you have any questions, we would be very happy and he would be very happy to answer them at the end in your comments or when you message us or email us. Good morning, sir. कैसे हैं आप? Good morning, Rishabh. Thanks for calling me. And I think today we are going to discuss a lot around the sports and swimming pools. Yeah. Sports is a big thing for you, isn't it? Like you've grown up playing a lot of sports and it has been a center towards your journey towards your profession as well. You started something, worked with something called Fitso, etc. And आपने काफ़ी कुछ काम किया है स्पोर्ट्स को. थोड़ा सा enlighten करो हमारे को कि क्या बैकग्राउंड है आपका and why are you an expert on swimming pools? So basically these all things comes to the picture being a army brat. Father is a retired army officer. तो कंडीशन क्या होती है कि बीइंग आर्मी ब्रैट आपको ना ये सारा एक्सपोजर बहुत यंग एज में मिल जाता है, जो कि नॉर्मली आज की सोसाइटी में हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है. स्पोर्ट्स की बात करें तो if I remember rightly, I have been exposed to a sport first time in Lucknow. There is a huge swimming pool with the name of Surya Sports Complex. I started swimming learning from there only. And I remember कि आज अगर बात करें दिल्ली के अंदर उतना बड़ा स्विमिंग पूल कोई है ही नहीं सिंगल, क्योंकि वो स्विमिंग पूल जो है वो टी शेप का स्विमिंग पूल है, जो कि आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलते हैं. You can see a 50 meter long swimming pool and in between the swimming pool there is a T which is diverting a pool toward the diving zone. Okay. आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे लेट्स से श्यामा प्रसाद मुखर्जी या तालकोटरा स्टेडियम को, दैट इज अ सेपरेट डाइविंग पूल, सेपरेट स्विमिंग पूल. तो दीज आर टू डिफरेंट बॉडीज. तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से बेसिकली. इनिशियली अगर बात करेंगे स्कूल डेज की तो बैक बेंचर रहे हैं. आई एम नॉट वेरी स्टूडियस, जिसने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ फोकस किया है. एंड व्हेन वी रीच टू क्लास 12 तो रियलाइज़ कि अब करना क्या है. तो करना क्या है तो कोई ऑप्शन नहीं बचा ना. फिर स्पोर्ट्स किया है, स्पोर्ट्स में ब्लू ब्लेजर पहना है, अपना CBSE नेशनल स्केल के SGFI खेल के, तो उसके बाद स्पोर्ट्स ही करियर बचा. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज कि इस फील्ड में बहुत कुछ है. इफ यू आर नॉट टेकिंग इट कैजुअली ना, लेट्स से कि इफ यू आर डूइंग एनी कोर्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, if you are taking it as a passion, then you have a lot of things to learn. Let's say कि there is a subject called anatomy, there is a physiology, biomechanics, which are equally strong, just like anyone pursuing a doctorate, MBBS, or anyone pursuing nursing for the nurses actually. So strong उतना ही है. समझने का फर्क ये है कि आप कितना इन डेप्थ उसको समझना चाहते हो. आई स्पेंड ऑलमोस्ट 15 years इन एजुकेशन. जहाँ पे एजुकेशन में अगर बात करें तो एजुकेशन के अंदर पूरा कंप्लीट सेटअप होता है. आपको एक कैंपस के अंदर वो सारा स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर मिलेगा जो आपको नॉर्मली किसी DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके मिलता है. आप बड़े स्कूल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, आपको उसमें फुटबॉल ग्राउंड मिलेंगे, एथलेटिक ट्रैक मिलेगा, स्क्वॉश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल. दीज आर द आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स एज वेल, जहाँ पे पूरे के पूरे अवेलेबिलिटी होती है. After spending almost 15 years in this whole journey, I realized कि यार एजुकेशन में तो बहुत कुछ कर लिया. एजुकेशन में I reached to a top being a chief of 20 schools in Oman, and I came back to India in 2017 again. And I had a sabbatical period of 6 months where I was just trying to lose my own weight, because Gulf lifestyle is very different from India. You got a green park over here, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना ऐसा जहाँ पे आप सुबह मॉर्निंग में रन कर सको जाके. You have to walk on the concrete roads only. And in between, I encountered with the people, those who are looking for someone who's having very senior role in education and from the sports background as well.
So new idea can be initiated. And we started a journey of Fitso with one of the co-founders, Saurabh Agarwal, who is a ITN and kind of passionate sports person as well. There are two kind of people. If you see कि आप जैसे ऋषभ रहे हैं, आप स्टूडियस रहे होंगे, मैं जैसे रहा हूँ, मैं बैक बेंचर रहा हूँ, दोनों में फ़र्क क्या आता है? कुछ बच्चे जो होता है इनिशियली पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड दे बिकम ITNs और टॉपर्स. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारी तरह के जो लेट मैच्योर होते हैं, शुरू में स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, बाद में जाके दिमाग जागता है कि यार ये भी कुछ करना था. तो मेरा और सौरभ का कॉम्बिनेशन ना कुछ ऐसा ही था. सौरभ वॉज ITN जिसने अपना इनिशियल डेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया पढ़ाई पे, एंड लेट इन द लेटर स्टेज ऑफ द कैरियर ही रियलाइज कि यार स्पोर्ट्स को बीइंग ए पैशन फॉलो करते हैं. एंड आई वॉज द वन हु इनिशियली फोकस्ड ऑन द स्पोर्ट्स एंड लेटर फोकस्ड ऑन द स्पोर्ट्स एजुकेशन. तो इस पूरी जर्नी में दोनों में फ़र्क ये था कि हमारा पैशन एक ही था. एंड वी डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ फिट्सो कि अब करना क्या है, प्रोडक्ट क्या लाना है. आई वॉज वेरी क्लियर कि यार प्रोडक्ट जो भी लाएंगे ना, इट शुड बी ऑफलाइन. आई एम नॉट अ पर्सन हु इज सेलिंग ऑनलाइन एनीथिंग, और वी आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग competition in online services, let's say in the nutrition, supplement, everything. There are a lot of big players, those who are already serving a lot of things in their platter. So we started with the swimming pools. And मेरा एक ही डायलॉग था सौरभ के साथ में भी. मैंने कहा सौरभ अगर काम करना है ना तो भाई चूल्हा अपना होना चाहिए, रोटियां अपने चूल्हे पे सेकेंगे और फिर बेचेंगे. अगर ढाबा भी बनाना है तो दूसरे के चूल्हे पे रोटियां सेक के ना आप कभी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे की जब मर्जी होगी तब बंद कर देगा अपना. राइट. And we started this journey in 2017 with the first indoor heated pool. और हमारा concern ये था कि how we are doing a different thing from any market in Mumbai or Bangalore. So we had a simple comparison कि let's say कि swimming is a sports which need a regular 12 month of practice in terms of sports as well, in terms of the health benefit as well. And when we compare a Delhi to a Bangalore or Hyderabad or Mumbai, these are the cities those who are able to provide a services round the year. बट दिल्ली इज हैविंग अ डिफरेंट वेदर्स. या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा बारिश होगी, उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो स्विमिंग पूल तो बंद होने हैं जब तक आप उसको ऑल वेदर नहीं बनाओगे. उस कंडीशन में हमारा कंसर्न ये था, वी हैव बीन टू चाइना, वी हैव बीन टू अदर कंट्रीज एज वेल टू डायग्नोज कि कहाँ पे क्या चल रहा है और हम कहाँ पे इसमें गैप ला पा रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मास गैप था वो हमें ये समझ आया कि 12 महीने स्विमिंग पूल नहीं चल पा रहे थे, और उसके पीछे टेक्नोलॉजी का जो अभाव कह लेंगे, अभाव बोल सकते हो बिल्कुल, और उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करना. अडेप्टेबिलिटी भी तो कम है हमारे यहाँ, हम जल्दी नहीं पकड़ते कोई नई टेक को, और हम कॉस्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं हर चीज़. हर जगह पे यही चैलेंज था. हमें एक चीज़ समझ आई कि जो करना है वो हमने खुद ही करना है, और मार्केट का गैप है कि हम दिल्ली में 12 महीने स्विमिंग पूल दे सकें. दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इन सारी मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे लोग हेल्थ बेनिफिट के लिए आना चाहते हैं, लोग कॉम्पिटिशन के लिए आना चाहते हैं. एक सिंपल सा गैप मैं आपको बताता हूँ. वी हैड हेड ऑफिस इन गुड़गांव. We had an encounter with one of the Olympian girl. She was saying to us कि we don't have any Olympic size heated pool in Gurgaon, and she is commuting to Talkatore from Gurgaon if she want to practice in the winters. Just to train. Shivani Kataria. She is Olympian in swimming itself only. तो उस कंडीशन में एक गैप तो पूरा मार्केट को समझ आ रहा था, एंड देयर वाज नो हेजिटेशन फॉर द पेइंग एज वेल. अगर आप ये जो मेट्रोपॉलिटन्स का जो क्राउड है इससे अगर बात करेंगे, दे आर हैप्पीली रेडी टू पे. हमने सबसे पहले एक नोएडा का स्कूल था, उसको इंडोर हीटेड में कन्वर्ट किया. ओके. एंड वी स्टार्टेड आवर पूल इन मंथ ऑफ डिसम्बर, एंड इन डिसम्बर एज वेल इट वाज सुपर हिट, ओवरसोल्ड. वेरी नाइस. सो वी रियलाइज द गैप एंड वी रियलाइज पीपल आर रेडी टू पे इवन फॉर द फैसिलिटी. Then within a 6 month we turn around almost 10 pools being a indoor heated pools, and slowly and gradually we reached to a number of 1 CR sale within a 6 month. So everyone was very happy because you know that in startup numbers बहुत मैटर करते हैं. आपने क्या पहले सेल किया है, इस साल क्या सेल कर रहे हो, क्या अचीवमेंट है आपकी. इट्स वेरी इजी टू बर्न द एंजल इन्वेस्टमेंट और प्री सीरीज इन्वेस्टमेंट एज वेल, बट जहाँ पे आप पहले ये चीज़ें कर चुके हो और उसके बाद आपको पता है कि यार फेलियर होना है, और उसके बाद आप एक नए टारगेट पे रीच कर जाते हो जो कि सडनली जस्ट लाइक इन स्टॉक मार्केट की अपर सर्किट लग गया है, तो आपने वो नंबर अचीव कर लिया. उस कंडीशन में आपको समझ आने लगता है, क्लियर दिखने लगता है. एंड जर्नी ऑफ स्टार्टअप, इफ यू कैन सी द नंबर्स क्लियरली, लेट्स से A to Z, if you are able to see through the numbers, then it's okay. If you're not able to see through and you're playing in between, then definitely you're going to be land up somewhere जहाँ पे आपको खुद ही सिचुएशन नहीं पता थी क्या होगी. अगले 45 दिन का पैसा कहाँ से आएगा, उस टाइट रोप पे चलते चलते
आदमी एकदम डिसिप्लिन हो जाता है एंड यू बेसिकली रनिंग 18 आवर्स अ डे सॉर्ट ऑफ अ शिफ्ट. एक शिफ्ट 18 घंटे की डेली लग रही होती है स्टार्टअप कल्चर के अंदर. वो एक अपने आप में एक अलग चैलेंज है. एंड स्टार्टअप की जर्नी में तो ये बोलूँगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि स्टार्टअप के 5 साल और नॉर्मल जॉब के 15 साल आर इक्वल. स्टार्टअप नॉर्मली ड्रेन यू इन द वे दे वांट अ फ्यूल टू ग्रो अप. So you are fuel actually who's coming with a lot of energy, and startups are ready to drain. They are ready to give you ESOPs. They are ready to give you a luxury lifestyle, kind of flashy offices as well. But you are draining your own ideas, your energies. Yeah. And that is the cost which startup normally take it from. पहले 5 साल का बर्नआउट बहुत हार्श होता है. स्टार्टअप में आसान नहीं होता. जस्ट टू सॉर्ट ऑफ टेक इट अप टू अ सर्टेन लेवल इट्स नॉट ईजी एंड यू वर्क. एक आदमी एक डिपार्टमेंट भी चला रहा होता है. ऐसे कई केसेस होते हैं. Been there, done that as well myself. So you started building swimming pools, but changing them. पहले आपकी शुरुआत ये थी कि जो existing pools थे उनको आप pre-heated या heated pools की तरफ आप लेके गए so that all weather pools बन सके. Correct? That's how your journey started in swimming pools. Awesome. And today you build and design pretty much all kind of swimming pools, and you're basically providing services for all kind of swimming pools, right? Yeah. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कितने टाइप के swimming pools हैं, किस तरीके के बनते हैं. थोड़ा सा आप जस्ट टाइप्स ऑफ स्विमिंग पूल्स पे ब्रॉडन करेंगे पहले. मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँगा, हिस्ट्री में स्विमिंग पूल टर्म का नाम की कोई चीज़ नहीं था. ये सिंपल से इनको जोहड़ बोला जाता था, पोखर बोला जाता था, तालाब बोला जाता था. कई जगह पे कच्चे होते थे, जैसे आप गाँव में देखेंगे कच्चे होते थे. आज भी अगर आप बात करें हिस्टोरिकल रूप से तो जींद के अंदर एक गाँव है जिसके अंदर भगवान परशुराम का एक तालाब बना हुआ है. और वो तालाब इतना बड़ा है जिसमें से हरियाणा के सबसे ज़्यादा स्विमर वहीं से निकलते हैं. इट्स अ नेचुरल पॉन्ड. एंड उसकी स्टोरी ये है कि भगवान राम कभी वहाँ से निकले थे. तो परशुराम जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पे पूरा का पूरा. और बात करें मॉडर्न इंडिया की या मॉडर्न वर्ल्ड की अब इस टाइम पे, तो हमारे पास जो बेसिकली स्विमिंग पूल सबसे ज़्यादा आपको जो पॉपुलर मिलेंगे दे आर बेसिकली ऑन द कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट में भी देर आर पीपल दोज आर यूजिंग अ सिंपली RCC स्ट्रक्चर. देर आर पीपल दोज आर यूजिंग अ brick and RCC as well mixing. There are people those who are using a RCC plus gunneting as well, being a waterproofing. These are the 3 methods which are normally used in a RCC pool. इसके अलावा जिसमें पोर्टेबिलिटी आती है, जिसको आप बोलते हैं कि यार मेरे घर में 1 हफ्ते बाद पार्टी है और मेरे को स्विमिंग पूल चाहिए अपने टेरेस पे, अपने बैकयार्ड में. देन देयर इज अ FRP pools which is called a fiber glass. मल्टीपल साइजेज आते हैं, फिक्स साइजेज आते हैं. विद इन अ वीक इंस्टॉलेशन, सारी की सारी इंस्टॉलेशन, फंक्शनिंग, पानी सब कुछ नीला हो जाता है. आपको कोई रैंप वॉक कराना है पानी के ऊपर तो उसके लिए आपको 20 फुट का 40 फुट का पूल लगाना है. दैट कैन बी पॉसिबल. एनीवे, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेटली देयर आर क्रेन्स, लिफ्टर्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड विद इन अ वीक आप रैंप शो करा सकते हो उसके ऊपर, पूरा का पूरा रैंप वॉक करा सकते हो. बट दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल यूनिट. Yeah. Okay. There are 2 kind of FRP pools. One is a single unit जो molded आता है, pre-molded. Let's say कि around 10 to 15 mm के आते हैं. 15 mm is good enough to hold a water, right, strength and everything. Then there are pools those who come being a FRP plates. You install the plates, you give a side support from the MS structure. Plus there is a liner which can be installed inside, so it will be also equally good. So it retains the water. Yeah. Water pressure ले लेता है वो सब. नॉर्मली जो इनके साइज आते हैं उसमें वाटर प्रेशर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. FRP काफी ड्यूरेबल होता है उसका. FRP ड्यूरेबल होता है, प्लस FRP pools are not installed in the commercial way actually. These are installed in the farm houses, on rooftops and backyards. Okay. So basically बहुत personalized pool होते हैं जिसमें कलर कॉम्बिनेशन, साइज, शेप आपकी चॉइस की होती है. Okay. और in place of RCC they are very economical as well. Third is a latest technology which is used in certain Olympic pools, steel pools. Steel pools. Steel pools. Okay. These are similar to FRP plate pools. These are designed and customized as per the requirement of Olympic size pool, diving pool, or artistic swimming pool, and they have been built up very quickly. They have a very long life as well because it's a stainless steel, and inside there is a again liner. Okay. There is no harm. Building method similar है. Building method, let's say if we talk about the building method, then there are underground pools, there are overground pools. So both are methods. तो जैसे existing building structure है उसके अंदर आजकल बनता है, फॉर एग्जांपल आज साउथ दिल्ली में इनफैक्ट स्पेशली जो बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, बिल्डर्स आर क्रिएटिंग दोज स्विमिंग पूल्स इन द बेसमेंट्स. तो बेसमेंट और ग्राउंड को एज अ पैकेज बना के बेचते हैं वो लोग, विच बिकम्स अ लग्जरी अपार्टमेंट एक्चुअली, और एक अच्छे प्रीमियम पे बिकता है ये सब. एंड
उसको लग्जरी नहीं कहूँगा, अल्ट्रा लग्जरी कहूँगा अब तो, बिकॉज द टर्मिनोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट. अल्ट्रा के आगे भी शायद कुछ आगे आई एम नॉट इवन श्योर ऑफ द टर्मिनोलॉजी. देन देर आर टेरेस पूल्स, पीपल ऑल्सो गो फॉर दैट. इनफैक्ट मैं आपको एक फ़नी किस्सा बताता हूँ. चलो, पालम मार्ग वसंत विहार पर देर इज़ दिस होम. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू फर्दर डिटेल्स. स्ट्रक्चर बना, सो वी आर स्टील सप्लायर्स, तो वहाँ स्टील गया पहली बार. स्ट्रक्चर बना, सो द वाइफ comes around and she says, सुनो ये तुमने क्या बनाया, इसमें स्विमिंग पूल नहीं है. So would you believe that the entire structure was raised down, redesigned to incorporate a swimming pool? And when I am talking about this person, the lady did not get involved at any of the stages. तो next time वो बना दोबारा structure, we supplied again, contractor वही थे, swimming pool बन गया. Now she comes around, she says, ये क्या किया तुमने, छत पे क्यों है स्विमिंग पूल? आई वॉन्टेड इन द बेसमेंट. छत पे कौन स्विम करेगा यार, दिल्ली में गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, तुम क्या कर रहे हो? एंड नाउ द हस्बैंड सेज, ओके व्हाट इज हैपनिंग नाउ? इट वाज रेज्ड डाउन अगेन, रीडिजाइन्ड, एंड द स्विमिंग पूल वाज पुट इन द बेसमेंट. एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी. इट्स एपिक स्टोरी एक्चुअली. इट इज़ अ ब्रिलियंट स्टोरी. मैंने बहुत स्टील सप्लाई किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम हैप्पी दैट सच पीपल एग्जिस्ट, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन टू, राइट? सो ऐसा कुछ हुआ था उस केस में, एंड दिस इज़ 10 years बैक. I fondly remember this story because it was just so amazing, and the architect was happy, the contractor was happy, everybody is happy because एक ही बिल्डिंग को 3 बार बना रहे हैं वो. बट तीनों बार मैंने जो नोटिस किया, द यूजेज ऑफ स्टील वाज डिफरेंट. पहले स्ट्रक्चर में स्टील बहुत कम लगा था, सेकंड में स्टील थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, लेकिन जब नीचे बेसमेंट में पूल बनाया, दैट वाज अ मच हायर क्वांटम ऑफ स्टील दैट वेंट इन बिकॉज द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन चेंज्ड. सो माई क्वेश्चन टू यू इज़, जब हम कभी भी किसी पूल को डिज़ाइन कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको एक ड्राइंग दे रहा है, या किसी भी तरीके का आरसीसी का काम हो रहा है स्विमिंग पूल बनने से पहले, पानी का अपना एक प्रेशर है, और वो पानी का सिर्फ एक स्टिल प्रेशर नहीं होता, बिकॉज इट्स गोना बी यूज्ड. तो गशिंग होगी, सब कुछ होगा, हर तरीके का प्रेशर आता है साइड वॉल्स पे. इज इट डिज़ाइंड कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द पूल? डू यू गेट इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पूल? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविल वाले काम में आप इन्वॉल्व होते हो, या फिर देर इज़ समबडी, देर इज़ एन एजेंसी ऑन बोर्ड विच सेज ओके स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बना के देगा, कॉन्ट्रैक्टर उसको बना के देगा, देन यू गेट इन्वॉल्व. हाउ इज़ अ पूल बेसिकली कंसेप्चुलाइज्ड इनिशियली, ये समझना चाहता हूँ. इसमें ऋषभ सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट वी आर हैविंग अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द मार्केट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर. ओके, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म कि दिस पर्सन इज अ स्पोर्ट्स आर्किटेक्ट? नहीं. Because people are not specialized to understand the fluid dynamics as well, कि कहाँ पे क्या बनना है. आपने जैसे एक एग्जांपल दिया, मेरे पास सेम एग्जांपल है. पंजाबी बाग में एक विला के अंदर स्विमिंग पूल्स बनना था. आई बीन टू अ साइट, हमने सारा प्लान कर दिया सिविल का पूरा का पूरा. एंड वन फाइन डे व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ओनर टू कम फॉर द मीटिंग टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट साइट पे ऐसे ही घूमना शुरू कर दिया. उससे पहले मेरे को प्रोजेक्ट साइट जो है रूफ दिखाया गया था खाली. बैकयार्ड से हम लोग ने फायर उससे स्टेयर से ऊपर गए, रूफ देख के हम वापस आ गए. जहाँ जिस रूफ के नीचे पूल, जिस रूफ पे पूल बनना था और उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर था, जब मैंने एक बार जाके देखा, इट वाज अ डबल सीलिंग हाइट एंड इट वाज अ ड्राइंग रूम. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हैव यू टेकन अ स्विमिंग पूल लोड इन द डिजाइन? बोले नहीं, उससे क्या फर्क पड़ना है. तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कहा मैं सिविल का काम नहीं कर पाऊंगा. मैं आपको एफआरपी का आइडिया दे सकता हूं, बट आई एम टोटली डेड अगेंस्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन जहां पे आपने लोड ही काउंट नहीं किया. लोड ही नहीं काउंट हुआ, लोड काउंट नहीं हुआ. हम स्विमिंग पूल को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं कि यार एक पानी तो है, कितना पानी है. एग्जैक्टली. यहाँ तक कि अगर डायनेमिक्स की बात करी जाए तो लोग इसको भी कैलकुलेट करते हैं कि आपके घर में वाटर टैंक कहाँ पे होना चाहिए जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, और उसमें डेड लोड और लाइव लोड लिया गया है या नहीं लिया गया. अब आप ये समझें कि अगर एक छोटा सा भी पूल बना रहे हो, दैट इज इक्वल टू 20 वाटर टैंक्स ऑल टुगेदर एंड मूविंग एंड शेकिंग. When you are getting in, it's moving and shaking and creating a vibration. और वो रोज ड्रेन आउट नहीं होगा, रोज पानी भरा नहीं जाएगा. It will be constant. It will be there. If it is an indoor pool in the basement or rooftop, wherever it has been made indoor, it will be constant. Your structure is bearing a load of around 30,000, 40,000, 50,000 kgs. Kgs of water. Yeah. जो उसमें कॉलम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो उसमें बीम इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर उसको लोड को काउंट नहीं किया गया तो इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है फ्यूचर में. I can name it very clearly. There is a one society which is commercially built up in Gurgaon, and
उनका 3rd फ्लोर पे रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल बना हुआ है एंड दैट पूल इज लीक्ड फ्रॉम लास्ट 5 years एंड डाउन साइड देयर इज अ ऑफिस बिकॉज समवन हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आपने 120 फीट के ऊपर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है उसके ऊपर विंड प्रेशर क्या है, आप वहाँ पे खड़े होकर ना मतलब कोई भी किसी भी तरह का कैंडल स्टिक नहीं जला सकते, इतनी विंड है वहाँ पे. You even can't higher up the wind pressure is higher, yes. Even you can't lit your cigarette as well. वहाँ पे अगर लीकेज है तो उसके लिए लीकेज के लिए अगर आपने इनिशियल स्टेज से प्लान नहीं किया कि पूल कैसे बनना है, यू हैव टू लीव द स्पेस इन बिटवीन द लेंटर एंड द पूल एज वेल. आप रूफ टॉप पे बना रहे हो, वो चीज़ें प्लान में नहीं है, आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को इन्वॉल्व नहीं किया है इसमें डिज़ाइन स्टेज पे, right. तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती ही आती है. बेसिकली जो कमर्शियल पूल बनते हैं वो सारे के सारे अंडरग्राउंड बनते हैं बेसिकली. और आजकल बेसमेंट में पूल्स भी काफ़ी स्कूल्स में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में बनने शुरू हो गए हैं. उस कंडीशन में दे नॉर्मली टेक अ क्लियर स्पैन. ओके. तो पूल के बीच में तो कहीं पे कॉलम आ नहीं सकता. नहीं आ सकता. तो क्लियर स्पैन लेने में जो अगर अपना पूरा का पूरा डिजाइन पार्ट पे उन्होंने किया वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. right. प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप बेसमेंट से पानी निकालने का रास्ता नहीं बनाते. और आज के टाइम पे आज ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है. शायद दिल्ली ने पिछले 3 महीने में इस चीज को बहुत क्लियरली विटनेस किया है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सम्प एंड हाउ टू क्रिएट अ सम्प इन योर बेसमेंट, व्हाट कुड बी अ सेफ्टी पैरामीटर, व्हाट्स द फ्लो यू हैव लेफ्ट, कि जिस स्पीड से पानी अंदर आएगा उस स्पीड से क्या आपका पंप बाहर निकाल पाएगा. अभी तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है सर. डी वाटरिंग पंप्स, मतलब इसका क्लासिक एग्जांपल हमारे पास भी है. वी आर वर्किंग विद वन ऑफ द वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली इटसेल्फ, इन साउथ दिल्ली. दे हैविंग ओलंपिक साइज पूल. ओके. एंड वी हैव बीन फ्लडेड विद 50 लाख लीटर ऑफ वाटर ऑन टॉप ऑफ 25 लाख लीटर. स्विमिंग पूल के अंदर 25 लाख लीटर पानी है, उसके ऊपर से 50 लाख लीटर पानी बारिश का आके भर गया है. दीवार टूट गई, पूरा पानी भर गया है. और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी डी वाटरिंग के सिस्टम का अरेंजमेंट नहीं है. और वहाँ पे ऑलमोस्ट आई हर्ड स्टोरी कि 20 करोड़ के लैपटॉप्स खराब हो गए क्योंकि उनके बेसमेंट में सारे के सारे लैब्स थे, वो भर गए पूरे के पूरे. तो ड्रोन्स थे, लैपटॉप थे, सारे के सारे पूरे के खराब हो गए. तो ये आज जो इन्वायरमेंटल चेंज चल रहे हैं ना, उस कंडीशन में वन शुड बी प्लानिंग अ डी वाटरिंग सिस्टम एज वेल. इफ यू आर क्रिएटिंग अ बेसमेंट, देन यू हैव टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्रिएटिंग अ सम्प एज वेल and with the advanced technology जो fail now. Who does the owners come to when you're talking about designing this? क्या सिर्फ सारा दारोमदार आर्किटेक्ट के ऊपर डाल देना चाहिए, या क्या एजेंसी दैट इज बिल्डिंग इट शुड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, या जो कमीशन कर रहे हैं जॉब, या जो वो एंटिटी बना रहे हैं, या वो बिल्डिंग बना रहे हैं, या वो इकोसिस्टम बना रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी किसकी है इस केस में? इसमें ऋषभ मैं ये बताऊंगा कि जो ओनर है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है टेक्निकली किसी भी चीज़ में. होती भी नहीं नॉलेज लोगों को. ओनर को लेट्स से कि इफ ओनर इज हैंडिंग ओवर टू पीएमसी सर्विसेज, पीएमसी इज द राइट एजेंसी टू इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. ओके. One of them is the architect. If you are going with the architect directly, then architect should be very open to involve specialized people to get the work done. इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना. We normally rectify the problems in the design, being a specialized agency. Right. कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. हम आर्किटेक्ट्स के जो डिज़ाइन होते हैं उनको इम्प्रोवाइज करते हैं बेसिकली, कि इसमें कहाँ पे क्या चीज़ें होनी है और क्या नहीं होनी है. Okay. जहाँ पे भी डिज़ाइन पार्ट आता है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर लोड का और उसकी क्रिटिकल सिचुएशंस का, हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर को भी गाइड करते हैं कि इसमें होना क्या है. Right. उस कंडीशन में स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर प्लस आर्किटेक्ट प्लस स्पेशलाइज्ड एजेंसी, दीज आर द 3 people दोज हु वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर व्हिच इज रोबस्ट एंड फेलियर प्रूफ. ओके. सर, स्विमिंग पूल्स को लेके स्पेशली इफ़ यू गो बैक 15-20 ईयर्स, एक काफ़ी लॉस चेंज हुए थे पीछे, स्पेशली होटल बिल्डिंग्स के लिए, वेयर दे लिमिटेड द डेप्थ ऑफ द पूल, कि इससे ज़्यादा डीपर पूल्स नहीं बनेंगे. पब्लिक एरियाज़ में, ईजी एक्सेस पूल्स में, विदाउट मेंबरशिप पूल्स में. नेशनल बिल्डिंग कोड भी रिवाइज हुआ इसको लेके. आर देयर एनी सेट गाइडलाइंस टुवर्ड्स अ सर्टन टाइप ऑफ पूल विद इन आवर नेशनल बिल्डिंग कोड? And is there a IS code governing the construction of the swimming pool? ऐसा कुछ है? NBC वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ना ऋषभ हमने बहुत इन डेप्थ में पढ़ा हुआ है. Okay. For the safety purpose, because when we do audit of the safety audit of the facilities as well, we realize कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और कहाँ पे नहीं हो सकती. And safety involve everything. It involve structure, it involve electromechanical parts, it involve fire hazard as well, everything. जहाँ पे भी आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, हमने अनऑफिशियली कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का भी सेफ्टी ऑडिट किया.
वी हैव नॉट टेकन एनी परमिशन बिकॉज वी वर नॉट ऑथराइज्ड टू टेक दैट थिंग. Okay. बट हमने विजिट करके वहाँ पे उन पैरामीटर्स को चेक करने की कोशिश करी जो सेफ्टी के हैं. That was a part of you studying it. Yes, because we have done safety audit for our all 100 facilities in FITSO. We created a manual for the safety audit, how the audit need to be go through. तो आपने चेकलिस्ट पॉइंट्स बनाए होंगे ना कि Checklist point plus explanation of failure. Let's say Yeah. if you are saying A point is missing, so what could be a rectification for the A point? हाँ जी. So we hire the agency, those who are specialized in this thing. Then we guide them and educate them ki what we are looking forward. So it was a new for them as well. They become a very big company now because after doing our 100 projects, they are doing a lot of safety audits. Okay. इस कंडीशन में NBC की जहाँ बात करते हैं NBC 1 and NBC 2 की दोनों की, कहीं पे कोई ऐसी सेट गाइडलाइन नहीं है. पहली चीज़. Okay. सेकेंड थिंग, अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में एक्चुअल में रिकमेंडेशंस आती हैं बिकॉज स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट Yeah. 10 years back, 20 years back, 30 years back. Government cannot enforce anything which was not illegal 30 years back. Okay. Now they want to improvise. तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट एक एडवाइजरी और गाइडलाइंस इशू करती हैं कि वी आर एडवाइजिंग यू टू रिड्यूस द डेप्थ एज पर द सेफ्टी पैरामीटर्स. Okay. ये पिछले 10 साल से 15 साल से चल रहा है. ये कहीं पे भी ये इन्फोर्स नहीं है. इस कंडीशन में कुछ क्लब्स ने, कुछ होटल्स ने डेप्थ कम कर दी है पूल्स की. लेकिन आज भी इस तरह के पूल हैं दिल्ली में जो 11 फीट गहरे हैं, 15 फीट गहरे हैं. Right. बिल्कुल है. साउथ दिल्ली में भी बहुत से पूल इस तरह Right. के. Of course. उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल उन लोगों पे होता है ज़्यादा जो नए पूल बना रहे हैं. लेट्स से इफ यू आर गोइंग थ्रू कंप्लायंस पार्ट, यू आर बिल्डिंग अप अ स्विमिंग पूल इन अ होटल और स्कूल और एनीवेयर, then you are going through a DDA as well, you are going through a MCDA as well. So in their own checklist, they reduce the depth कि आप 5 फीट कर लीजिए, 5.5 कर लीजिए, Right. as per the safety parameter for the public pool. Right. But this is not well defined. अगर आप मेरे से बात करेंगे कि आपको ओलंपिक साइज पूल बनाना है जिसकी डेप्थ है 7 फीट या 8 फीट रखनी है, 2 मीटर रखनी है पूरी की पूरी, we can challenge them कि we are making Olympic size pool Olympic size pool के dimensions क्या होते हैं वैसे? 50 meter by 25 meter and 50 2 meter meter. throughout. 2 meter throughout depth. 2 meter throughout. That's Olympic standard because Olympians जो होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो अराउंड 7 फीट के आसपास होती है. Exactly. और उनकी जो विड्थ होती है आर्म्स की जब वो बटरफ्लाई करते हैं दैट इज मोर देन 2 मीटर. सो द विड्थ ऑफ द लेन इज 2.5 मीटर. Right. ताकि उनके हाइंड कहीं पे टच ना करें, क्रॉस ना करें Right. दूसरे को. ये मैंने रिसेंटली फरीदाबाद में नोटिस किया है कि फरीदाबाद में दे आर सेइंग वेरी ओपनली MCF directly, if you are building up a pool below than 4.5 feet, you don't need to take any license. Very nice. Okay. Which is not mentioned anywhere in the license or not a part of term and condition of the license as well, Okay. because Delhi is having a license system. They are giving you a free hand कि अगर इससे कम डेप्थ का पूल बना रहे हैं तो then it's fine that you can go ahead with it. फिर वो रेड टेप नहीं रहता है बनाने में. Is that what it is? Kind of, but there is a catch in between the licensing authority and MCF or MCG. Because MCG or MCF is not having any role in the swimming pool licensing. अच्छा. In Delhi, swimming pool licensing, MCD is having a role. MCD normally issue a health and trade license, which is one of the document to get the swimming pool license. Right. वो परमिट पहले लेना होगा बनाने से पहले. बिल्कुल बिल्कुल. और दिल्ली में बहुत वेल डिफाइंड है. दिल्ली के अलावा मेंटेनेंस का भी कोई परमिट होता है व्हेन यू आर रनिंग इट लेटर, जैसे लिफ्ट्स का लाइसेंस होता है? नो ऐसा कुछ नहीं होता. ओके. नहीं. इस तरह के चैलेंजेस हमारे साथ आते हैं. जब हमने 2017 में फर्स्ट टाइम इंडोर हीटेड पूल किया नोएडा के अंदर, तो वहाँ से अथॉरिटी आई और उन्होंने हमसे लाइसेंस मांग रहे थे कि आपने ये जो हीट पंप लगाए हैं इसका लाइसेंस कहाँ पे है. ओके. और मेरा सवाल ये था हीट पंप का लाइसेंस कभी होता है क्या? मतलब जैसे जनरेटर का लाइसेंस होता है. मैंने चलिए मैं आपको टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ. ये हीट पंप जो है कंप्रेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है, जो आपके घर में एसी लगा होता है सेम उसी तरह से. राइट. क्या आप एसी का लाइसेंस लेते हैं? मेक सेंस. तो इट वाज अ काइंड ऑफ न्यू लर्निंग फॉर देम कि इसका कोई लाइसेंस नहीं होता. वो उनका कहना ये था कि अगर पानी के अंदर करंट आ गया तो मैं यही पूछा, मैंने आप गीजर में नहाते हो कभी आपके नल में करंट आ जाता है क्या? या नहाते हुए करंट आपकी बॉडी में आ जाता है? It's a separate entity. Electrical is separate from the water thing. There is a difference in the technology actually. Absolutely, yeah. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा कोई और गवर्निंग बॉडी होती है जो कोई परमिट में इन्वॉल्व होता है या किसी तरीके से, हमें ज़रूरत नहीं होती आफ्टर द MC हैज़ गिवन द अप्रूवल? दिल्ली का जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है. ओके. You have to go through a DDA first. Your map should be approved wherever you are building up your swimming pool. Then you have to go through a MCD.
to get the health and trade license if it is a public use pool. Okay. If it is not a public use pool, you are building up your own villa, then you don't need a MCD's approval for this thing. Third thing is for the public pool, you need a DCP traffic approval as well. Okay. General hospital approval as well, and Sports Authority of India's approval as well. Okay. So these are the basic need when you are applying for the license for the commercial use or in the public property. Let's say school, hotel, clubs, institutions, everywhere this license normally get implemented. बट प्राइवेट पूल के लिए, प्राइवेट हाउस के लिए जब आपका नक्शा पास हो रहा है तब उस समय पर वो That is good enough. उसी में हो जाता आपको खाली अपना DDS से अपना जो नक्शा है वो पास कराना, उसके बाद आपको किसी भी और किसी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. है. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. और उसमें सारे स्पेक्स जाते ही हैं नक्शे के अंदर, सब कुछ डिटेल पूरी. बेसिकली नक्शे के अंदर तो पूरा वो आर्किटेक्ट्स पूरा डिजाइन बना के देते हैं, डेप्थ क्या है उसकी, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है. राइट. इसका एक बहुत बड़ा बेसिक रीजन ये है कि व्हेन यू आर बिल्डिंग अप समथिंग इन योर ओन प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. आप स्विमिंग पूल बना रहे हो या आप मौत का कुआं बना रहे हो, दैट इज योर हेडेक बिकॉज आप अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो. Okay. बट व्हेन इट कम्स टू अ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक यूजेस, देन गवर्नमेंट इज पुटिंग अप ऑल द गाइडलाइंस ऑफ दैट. एक्चुअली लाइबिलिटी भी आ जाती है ना एजेंसीज के ऊपर फिर उसके. 100% लाइबिलिटीज एजेंसीज के ऊपर है एंड प्लस थर्ड पार्टीज के ऊपर भी है, दो जो ऑपरेटिंग. और जो भी लाइसेंसेज होते हैं, ये लाइसेंसेस किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे नहीं मिलते, ये इंडिविजुअल के नाम पे मिलते हैं. ओके. इफ आई एम द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आई एम द मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेरे नाम पे लाइसेंस मिलेगा. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. एमसीडी का लाइसेंस भी, हेल्थ एंड ट्रेड भी, और स्विमिंग पूल का लाइसेंस भी. इवन इन अ पब्लिक पूल. हाँ जी, बिल्कुल. But why is that effective? Is that a good thing? Do you think? Yeah, A license organization should be on the name of living thing. अच्छा, is it? Yes, licensee should be responsible for all the mishaps ना. So अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर चेंज हो गए, उन्हें रीअप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस पे दूसरे डायरेक्टर के नाम पे. जी बिल्कुल. ओह, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये नहीं पता. इसमें भी एक और कैच है. आप लाइसेंसी का नेम डीसीपी लाइसेंसिंग में तो चेंज कर सकते हो स्विमिंग पूल में, एमसीडी में चेंज नहीं कर सकते. एमसीडी में आज तक ये प्रोविजन नहीं है कि आप लाइसेंसी का नाम चेंज करो. आपको लाइसेंस डंप करना पड़ता है और आपको रीअप्लाई करना पड़ता है फ्रेश लाइसेंस के लिए. ओके. टिल दैट टाइम यू कांट यूज द फैसिलिटी इन एनी केस. यू हैव टू सेफगार्ड इट या बंद करके रखना पड़ेगा. एमसीडी इज हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. एमसीडी इज नॉट क्लियर व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली. And when it comes to licensing, they don't know even ABC of the swimming pool. काफी कुछ मॉडर्नाइज होने की जरूरत है पॉलिसी एंड्स पे ना. MCD is a completely bogus organization जिसमें कोई भी काम ना आप कराने जाओगे सीधे रास्ते से होगा ही नहीं आपका काम. वो अपने आप में एक चैलेंज है. अपने आप में चैलेंज है. यूनिफाइड होने के बाद और चैलेंज बढ़ गया है. जहाँ पे इसकी फीस लगती थी 1500 रुपये, वहाँ पे हो गई 15,000 रुपये एक साल की. राइट. 3 साल की लाइसेंस की फीस 45,000 पे होती है. और MCD है जिसमें कोई रोल नहीं है. द ओनर और द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग अ फीस for good for nothing. You are paying a tax as well, you are paying a fees as well. Right. Are there a lot of new swimming pools coming around in Delhi? दिल्ली के अंदर स्पेस चैलेंज है. दिल्ली अब थोड़ा सा कमर्शियल पूल से पर्सनलाइज पूल की तरफ शिफ्ट हो रहा है. वही. दिल्ली भी और गुड़गांव भी, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि अल्ट्रा लग्जरी है और इट माइट बी अ न्यू टर्म की ऑप्टिमम लग्जरी है. ये स्विमिंग पूल होना ही अपने आप में एक ये आदमी की वर्थ दिखाता है, क्योंकि स्विमिंग पूल इज अ काइंड ऑफ वाइट एलिफेंट. आपने एक बार बना लिया, आपको मेंटेन भी करना है. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि ये पेट्रोल कार है, आपने घर में पार्क कर दी है तो मेंटेनेंस नहीं मांग रही है. इट्स अ डीजल कार. आपने एक बार बना दिया तो आपका मेंटेनेंस चलता ही रहेगा उसमें. और ये उनके लिए है जिनके पास वर्थ है इस चीज़ की. राइट. दोज हु वांट काइंड ऑफ स्विमिंग पूल की 5 मीटर या 10 मीटर का पूल बना दिया बैकयार्ड में, उसमें काउंटर करंट टेक्नोलॉजी लगा दी है, अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा दिया, कार्ट्रिज फिल्ट्रेशन लगा दिया. आप एक ही 10 मीटर के अंदर पूल के अंदर 1 घंटे 2 घंटे स्विमिंग करिए ना, लगातार आप स्विम कर रहे हैं, काउंटर करंट आपको पीछे फेंकता जा रहा है, आपको आगे जाने नहीं दे रहा. हाँ, आई हैव सीन दोस. सो दैट्स इंस्टाग्राम पे देखा है मैंने, वो बड़ा अपीलिंग लगता है देखने में. तो अपीलिंग है जिनके लिए, जिनको वर्कआउट करना है. लेट्स से यू आर दैट्स अ ट्रेनिंग पूल एक्चुअली. You are the person who normally put earphones because water or the swimming is very boring sports. Yeah. You have to have an earphone in your ears and you can keep on continuously swimming in your backyard pool for hours. That's the best way of fitness as well. That current will keep on pushing you back and Yeah. you currently swimming against the tide. There are system to adjust the speed. Yeah, yeah, of course. Once you उतना pressure या उतना wave का वो रहेगा. Once you realize कि what is your speed, then you will be maintaining that speed. This tech is available in India easily? Yeah, very easily. Yeah. We normally install to backyard pools or rooftop pools. Very interesting. If it is a 5 meter pool, it's good to go with the counter current system. Very interesting. ये बात नहीं मुझे पता थी कि ये टेक अवेलेबल है इजीली इंडिया में. इंडिया में टेक तो अवेलेबल है बट अवेयरनेस अवेलेबल नहीं है. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू अ कॉस्ट ना, वी रियलाइज कि यार कॉस्ट में ना शूट कर रहा है, तो हमें इतना महंगा सिस्टम नहीं चाहिए. मैं एक एक करके कुछ टेक पकड़ूंगा आपके साथ, कॉस्ट पे भी आएंगे. बिल्कुल. अगला सवाल ये है कि क्या हमें एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है वाइल डिज़ाइनिंग अ पूल? हाँ जी.
उसके बिना नहीं होगा? नहीं. ओके. We are not architect. We are specialized agency. We also hire architect. If we are doing an end-to-end turnkey project, we also get it designed through architect only. Right. And structural engineer as well. Definitely. The design should be approved from a structural engineer. कई जगह पे क्या होता है कि हम रूफटॉप को समझ रहे हैं कि ठीक है इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जरूरत है या बैकयार्ड में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जरूरत है. Right. लेकिन जहाँ पे लूज सॉइल है या सॉफ्ट सॉइल है वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर की डबल जरूरत है टू टेस्ट द सॉइल. कि ऐसा ना हो ना कि आप उसके ऊपर लोड डाल दिया आपने, उसके बाद वो नीचे से पूल ही नीचे धस रहा है जमीन में. Right. In-ground pools are easier compared to a pool in the building. Is it not? Yes. कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर भी पूरा. एंड एक चीज़ है जो मेरे को, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन मे बी, बट किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का टेस्ट होता है पहली बारिश में. नई बिल्डिंग जो बनी है वो पहली बारिश में टेस्ट होती है. इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्टिंग कुछ अग्रीमेंट्स भी ऐसे बनते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होती है या तो 1 साल बाद या फर्स्ट रेन, विच एवर इज़ फर्स्ट. तो वो रेनी सीजन बिल्डिंग कैसे एंड्योर करती है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कुछ लास्ट का कुछ हैंड ओवर पेमेंट होती है. दैट इज़ गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर लेटर. अब जब पानी एक टेस्ट है बिल्डिंग के लिए, एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग समथिंग विच विल होल्ड वाटर, विच विल हैव दैट प्रेशर, प्लस पानी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एवरीथिंग. दैट इज़ द नेचर ऑफ वाटर. तो आप नीचे लाइट्स भी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर रहे हैं, आप ग्राउट्स यूज़ करके टाइल्स भी लगा रहे हैं, वाटर प्रूफिंग भी कर रहे हैं. और ये 2 एस्पेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड वाटर प्रूफिंग, जो रेगुलर बेसिस पे जो लोग रोज़ाना बिल्डिंग में बना रहे हैं वो भी फेल होते हैं उसमें. हाउ डज समबडी बिकम प्रोफिशेंट इन क्रिएटिंग अ लीक प्रूफ स्विमिंग पूल एंड अ सेफ स्विमिंग पूल व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड इलेक्ट्रिकल करंट्स एट्सेट्रा? तो पहले आप वाटर प्रूफिंग एक्सप्लेन करें सर कि व्हाट आर द बेस्ट टेक्निक्स फॉर अ स्विमिंग पूल, एंड देन वी विल गो टू द इलेक्ट्रिक वर्क. ओके, सो पूल्स जो प्रोफेशनल पूल्स होते हैं, लेट्स से कॉमर्शियल पूल्स होते हैं, उसके अंदर कोई लाइट नहीं होती है. ओके. ये लाइट हमने अपनी चॉइस से उसके अंदर ऑल्टरनेट दिया है कि हमें अंदर लाइट चाहिए. ओके. बेसिकली पूल्स आर फ्रॉम द टॉप लाइट ओनली, एंड ओलंपिक स्टैंडर्ड इज 1500 लक्स for the swimming pools as well, for the badminton hall as well. Exterior lights. Yeah. Exterior light from the top or from the side. Pools के अंदर जो लाइट देने का कॉन्सेप्ट शुरू किया है वो हमने अपने आप किया है कि अंडर वाटर लाइट लगाते हैं. Sorry, 1500 लक्स से इन डेप्थ तक विजिबिलिटी आ जाती है. That's why you said 1500. 100%. Yeah. 100% clear. Yeah. I mean, I just need to specify that so that for people to get it. Yeah. एक्चुअल में लाइट जो ट्रांसफर होती है वो डिपेंड करता है कि आपके पानी के अंदर कितने माइक्रॉन्स पार्टिकल हैं. Right. अगर वो माइक्रोन पार्टिकल ज़्यादा हैं तो लाइट नीचे तक पूरी तरह से आपको क्लियर नहीं दिखने देगी. अगर आपका पूल क्लियर है, लेट्स से ओलंपिक साइज भी पूल क्लियर है, एंड यू हैविंग गुड कंपनी ऑफ गुड ब्रांड ऑफ गॉगल्स एज वेल, यू कैन सी थ्रू द वाटर एंड टू एंड वॉल. ओके, क्लियरली. ओके. देयर इज सम नंबर रिटन ऑन द वॉल, नाउ यू कैन रीड इट एज पर योर आई साइट. जहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात आती है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन से सेक्रीफाइस कर जाते हैं. लेट्स से वी नॉर्मली एडवाइज टू द पीपल कि गो फॉर द कार्ट्रिज फिल्टर प्लस गो फॉर द अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम. ये कॉस्ट को शूट अप करते हैं. इससे बेटर लोग समझते हैं कि सैंड फिल्टर लगा लेते हैं. सैंड फिल्टर इज जस्ट लाइक ए मैनुअल फिल्टर विच इज हैविंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ सैंड, जिसके अंदर से पानी जाता है और फिल्टर होके आता है. जो हमारा एंशिएंट देसी टेक भी कह लो या उसको ग्लोबल टेक भी कह लो. अर्थ फिल्टर आर नॉर्मली बिल्ट अप इन द सेम वे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी यूज होता है, वो मैंने देखा है. हम कई जगह पे इसको टॉप अप करते हैं कि जहाँ पे सैंड फिल्टर लगे हैं, सैंड फिल्टर के आगे हम जाके कार्टेज फिल्टर लगा देते हैं. सैंड फिल्टर का अपनी कैपेसिटी होती है, लेट्स से 60 to 70 माइक्रोन पार्टिकल्स को फिल्टर करने की. ओके. लेकिन जहाँ पे आप जैसे ही कार्टेज फिल्टर पे आते हो, दे नॉर्मली फिल्टर अप टू 5 माइक्रॉन्स. एंड उसके साथ में आप अगर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लगा देते हो, it kills almost all the bacteria, plus it reduces the consumption of the chlorine as well, up to 60%. Let's say if you are using 1 kg of chlorine in the pool daily, then you only need to use 300 to 400 gram of chlorine. Okay. Smell, stink, सब कुछ खत्म हो जाता है इससे. अब जहाँ पे बात आती है कि लाइटिंग की, आप जो बोल रहे हैं कि लाइटिंग पूल के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इससे शॉक प्रूफ कैसे बनता है, तो इसमें सिंपल सा डिफरेंस आता है कि ये AC और DC का फ़र्क होता है. दीज आर नॉन ट्रांसफरिंग करंट एक्चुअली. ये जो भी लाइट्स आती हैं, और अगर प्रोफेशनल पूल बनाते हैं तो हम ये लाइट्स एडवाइज ही नहीं करते बिल्कुल. जो जहाँ पे डिज़ाइन आता है, आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे ये बोला जाता है कि इट शुड बी हैविंग RGB काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन और लाइट्स इनसाइड द पूल एज वेल. उस लाइट से आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, मतलब वो लाइट आपको ना किसी भी तरह से काम नहीं देती है. हाँ, उसको वेयर एंड टेयर रहता है, और लाइट आप भरे हुए पूल में भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इस तरह की. ओके. और उसके साथ बेसिकली सीलेंट लगे रहते हैं. जहाँ पे भी लाइट्स का
होल होता है वहाँ पे सीलेंट होते हैं पूरी तरह से, वो खराब नहीं होते कभी भी। Okay. लेट्स फॉर 20 ईयर्स कहीं पे खराब नहीं होते, डैमेज नहीं होते किसी भी तरह से। Right. और पानी के अंदर जो ये AC और DC का फर्क है, इससे तो करंट आने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बेशक लाइट को निकाल दीजिए, पूरा बल्ब को भी निकाल दीजिए, Right. नेकेड वायर छोड़ दीजिए, उसके पीछे ऑलरेडी अडेप्टर लगा रहता है जिससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ना होता। Right. अब बात आती है मेन वाटर प्रूफिंग की। सो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज आस्किंग इज बिल्डिंग अप अ हाउस, सो ही सेड कि ज्ञानेंद्र आई एम लुकिंग फॉर अ वाटर प्रूफिंग। मैंने भाई वाटर प्रूफिंग हम भी करते हैं, या तो हमसे करवा लो, या हमसे बेटर करवानी है तो फिर उनसे करवाओ जो डैम बनाते हैं। उनसे कराओ जो डैम बनाते हैं। डैम बनाते हैं। तो ही वॉज लाफिंग कि ही सेंड इमोजी टू मी। मैंने पूछा उनको फोन करके क्या हुआ, मैंने क्यों हंस रहे हो? बोला आपने जो डायलॉग मारा ना बहुत अच्छा लगा सुन के। मैंने देखिए वाटर प्रूफिंग में क्या होता है कि पीपल अंडरस्टैंड कि वाटर प्रूफिंग क्या होती है। आपके घर में टेरेस पे होनी है, बाथरूम से होनी है, बालकनी में होनी है, इन जगह पे वाटर प्रूफिंग होनी है। हम वाटर प्रूफिंग करते हैं जहाँ पे 25 लाख लीटर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी Exactly. हमारी वाटर प्रूफिंग फेल होने का मतलब है देयर इज अ ह्यूज लॉस टू द कंप्लीट प्रोजेक्ट, जिसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करते हैं एंड मल्टीपल लेयर्स में हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। जहाँ पे मेरे को शॉर्ट वाटर प्रूफिंग चाहिए कि जहाँ पे बिल्कुल लीकेज ना हो अगले 20 साल 25 साल, और क्लाइंट इज ओके विद द कॉस्ट, देन वी गो विद द RCC फर्स्ट, देन वी गो विद द गुनाइटिंग, देन वाटर प्रूफिंग। Okay. So gunaiding itself is very solid in terms of waterproofing. Then again another layer you are putting up a waterproofing जो कि और ज़्यादा उसको dual protected करती है। और waterproofing में भी we go with the fiber mesh plus waterproofing those who can stretch actually with the weather. Yeah. वाटरप्रूफिंग स्विमिंग पूल के अंदर वो कामयाब नहीं होती जो स्ट्रेच नहीं कर सकती विद द वेदर। लेट्स से कि दिल्ली के अंदर समर्स में पूल भरे हुए रहते हैं, विंटर्स में पूल को खाली कर दिया जाता है, और उस टाइम पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वो नॉर्मली डैमेज करती है पूरी वाटरप्रूफिंग को, प्लस आपके जो ग्राउटिंग होती है उसको पूरा का पूरा। उस कंडीशन में हम फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफिंग के साथ जाते हैं, मल्टीपल लेयर्स, लेट्स से मिनिमम 4 लेयर्स और अप टू 7 लेयर्स, 7 लेयर ऑफ वाटरप्रूफिंग। नॉर्मली लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इतनी लेयर क्यों करते हो। इतनी लेयर जो है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी को बहुत बढ़ा देती है कि वो स्ट्रेच कर सकती है और डैमेज नहीं होगी। वाटर प्रूफिंग ओनली कैन डैमेज इन अ वन कंडीशन व्हेन यू आर ड्रिलिंग द पूल, यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल समथिंग और द पर्सन हु इज नॉट अवेयर कि इसके नीचे वाटर प्रूफिंग है जो पंचर हो सकती है, अदरवाइज वाटर प्रूफिंग पंचर नहीं होती। आप जब 5-7 लेयर्स की बात कर रहे हैं ऑफ कोट्स दैट हैपन, what is the thickness of the surface that goes in? Easily 1 इंच के लेयर बनाते हैं? नहीं, these are the liquid actually which is applied on the surface. माइक्रो लेयर्स ही हैं ये सब? माइक्रो लेयर्स है सारी की सारी। राइट। माइक्रो लेयर्स हैं, उसमें मतलब बेस प्रिपेयर करके बेस के बाद अपना नॉर्मल गैप फिलिंग करने के लिए फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग होती है, देन सेकंड लेयर एज वेल ताकि उसका बेस सॉलिड हो जाए। उसके बाद मल्टीपल लेयर्स जो होती हैं दे आर एक्चुअल वाटर प्रूफिंग। हम जो नॉर्मली बिल्डिंग्स में करते हैं वो फर्स्ट 2 लेयर होती है जो हम यूज कर रहे होते हैं। That's it, हाँ। जो हम बेस में यूज करते हैं। राइट। उसके अलावा थर्ड लेयर पे तो बिल्डिंग्स के अंदर कोई जाता ही नहीं है कि थर्ड लेयर भी होनी है, किस चीज की होनी है। देन वी कम टू अ मैश एज वेल, देन वी कम टू अ फाइबर मैश एज वेल। फाइबर मैश नॉर्मली प्रोवाइड अ स्ट्रेचेबिलिटी टू द। When you say mesh is metal mesh? नो फाइबर मैश। फाइबर मैश एक ही टाइप का लगता है, राइट? फाइबर मैश कंप्लीटली फाइबर मैश के साथ करते हैं। ठीक है। एंड देन वी गो विद द ग्रेन्यूल ऑफ मैश एज वेल। ओके। एंड इफ यू वांट टू बी अ रॉक सॉलिड देन वी गो टू अ PU। ओह, अच्छा। एक बार आप करिए जिंदगी भर, मतलब 50 साल की गारंटी भी दे सकते हैं अगर क्लाइंट चाहता है तो। राइट। इस तरह की मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, एप्लीकेटर्स अवेलेबल हैं। और आपको मतलब लॉन्ग टर्म की वारंटी चाहिए इसकी कि ये लीक प्रूफ रहेगा तो उसकी भी वारंटी रिटर्न। मैंने देखा है इंडिया में मटेरियल्स और कंपाउंड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आज के डेट में लेटेक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स अलग आ रहे हैं, एपॉक्सी बेस्ड प्रोडक्ट्स अलग आ रहे हैं। इट्स जस्ट देयर इज नो लिमिट। हर तरीके का प्रोडक्ट अवेलेबल है। आज आप कुछ भी ढूंढना चाहें विद दैट स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन वो मिल जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एड मिक्सचर्स की इंडस्ट्री ले लीजिए, केमिकल्स की इंडस्ट्री ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स किसी भी टाइप का ले लीजिए, एक अच्छी एडवांसमेंट हो चुकी है, विच इज़ अ वेरी सॉलिड प्रॉमिसिंग फ्यूचर अहेड। आफ्टर दैट इज़ डन, सर हर स्विमिंग पूल में टाइल लगी होती है, क्यों? ज़रूरत क्या है? और वो टाइल के साथ फिर वो ग्राउट से उसको सील किया जाता है, क्योंकि टाइल का एक जॉइंट आएगा उस, आई थिंक दैट इज़ द पर्पस ऑफ द ग्राउट, जस्ट टू सील दैट जॉइंट, राइट? टाइल लगाते ही क्यों है? अगर हम इतनी ज़्यादा लेयर्स बना रहे हैं तो ऐसी क्या नीड है टाइल लगाने की? कैन वी लीव इट लाइक दैट? टाइल्स बेसिकली लेट्स से कि जहाँ पे हमने, मैं नीचे से प्रोसेस बता दूँ एक बार इसका, प्लीज़, बेस से पूरा का पूरा, प्लीज़। वंस द सॉइल टेस्ट इज डन एंड सॉइल इज ओके टू गो विद द पूल, देन वी डू इनिशियली PCC लेवल। आफ्टर ड्रेसिंग द पूल कंप्लीटली एरिया, इन ग्राउंड पूल ड्रेसिंग करने के बाद पूरा का पूरा वी गो टू द PCC, देन वी कास्ट RCC। On top of the RCC, we go to a gunaiding.
गुनाइटिंग के ऊपर वी गो टू वाटर प्रूफिंग के ऊपर देन वी गो टू अ प्लास्टर टू लेवल द स्विमिंग पूल, एंड आफ्टर दैट वी गो विद द एडेसिव एंड टाइल्स. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कि इसमें वाटर प्रूफिंग कितनी है, इसमें वाटर प्रूफिंग गुनाइटिंग से शुरू हो गई है. राइट. गुनाइटिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ वाटर प्रूफिंग, जिसको मतलब लीक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सेकंड लेयर इज 7 लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग विच यू आर डूइंग. थर्ड लेयर इज अगेन यू आर डूइंग अ प्लास्टर which is again mixed up with the waterproofing solutions. वो तो उन layers को protect करने के लिए हो गया ना plaster. Fourth layer is again you are doing an adhesive completely on the pool. When you are laying up a tile, these tiles normally paste with the adhesive. Yes. Fifth layer is the tile and epoxy itself. When you take a good amount of a gap in between the tiles, let's say 3 to 4 mm का आप spacer use कर रहे हैं, तो वो उसकी first layer है protection की. उससे नीचे अगर पानी जाएगा, then the tiles will be making a kind of hump in the pool and you can feel the hollow sound inside the tile. पूल के अंदर कहीं पे भी अगर hollow sound है, इसका मतलब है वहाँ पे गैप आ चुका है और वहाँ पे वाटरप्रूफिंग की फर्स्ट लेयर जो है वो ब्रेक हो चुकी है, ब्रेक हो गया और नीचे पानी जा चुका है. बेसिकली जब भी आप पूल्स में इस तरह का देखते हैं काम, तो आपको मोस्टली बस इतना ही मिलेगा कि पूल टाइल से नीचे पानी चला गया, उससे नीचे प्लास्टर तक पानी चला गया और प्लास्टर के नीचे पानी चला गया. वाटरप्रूफिंग को क्रॉस नहीं कर पाता पानी 99% केसेस में. वाटरप्रूफिंग को क्रॉस ना करने का रीजन यही है कि आपने वहां तक उसको जाने ही, उससे आगे क्या उसका रास्ता ही नहीं है जाने का, जिस पे आप जा सके किसी भी तरह से. हाँ, ये जब भी आप इसको ओपन करते हैं देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके नीचे की वाटरप्रूफिंग की लेयर डैमेज ना हो. जहां तक हॉलो साउंड आ रहा है वहां तक उसको करें, क्योंकि वाटरप्रूफिंग में जो पैच लगता है दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल. वाटरप्रूफिंग इज समथिंग व्हिच नीड टू बी डन इन अ वन लेयर डायरेक्टली, राइट, जस्ट लाइक अ PU flooring. Or you can say just like a difference between a shotcrete and guniting. People normally prefer कि let's do a shotcrete as well. Shotcrete normally create a joints which are very clearly visible and later it can be leaked as well. Right. But guniting are joint free. आप जहाँ तक भी करेंगे honeycomb टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा और जॉइंट फ्री होगा. जहाँ से शुरू करेंगे दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगा. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का भी इफेक्ट कम होता है उस केस में कंपेयर टू शॉटक्रीट. टाइलिंग का एक तरीका और मुझे समझ में आता है कि रीज़न समझ में आता है, इट हेल्प्स द सरफेस ऑफ द पूल टू बी मेंटेन्ड एज अ क्लीन सरफेस. आप किसी भी तरीके से उसको खाली पूल को मेंटेन करते हैं जब, या क्लीनिंग करते हैं, इट्स ईजी टू वॉश अवे इफ़ यू लीव दैट पार्ट आउट. सिरेमिक इज़ ईजी टू सॉर्ट ऑफ क्लीन. आजकल तो बहुत अलग अलग टाइप की टाइल्स आ गई हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स दैट आई सॉर्ट ऑफ फाउंड आउट व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग वाज कि एल्गी फॉर्मेशन नहीं होती. फिर टाइल के ऊपर जल्दी से एल्गी नहीं बनता. अदरवाइज जहाँ भी स्टैगनेंट पानी है, फर्ज करिए वो पूल यूज़ नहीं हुआ 10 दिन 15 दिन, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एल्गी फॉर्मेशन हो जाती है, या किसी भी तरीके का बैक्टीरिया फॉर्मेशन होना बड़ी जल्दी से हो जाता है. पानी वार्प करने लगता है. आप बारिश का माहौल ही देख लें, 2 दिन के अंदर वो पानी डर्टी हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ इन दैट एरिया. वो एक डर्ट के अराउंड होता है और वो गंदा जल्दी हो जाता है. तो स्विमिंग पूल का पानी की क्लीनलीनेस और एल्गी फॉर्मेशन को डिफॉर्म या डिले करने के लिए कहीं ना कहीं वो टाइल कारगर रहती है. इसीलिए मैंने देखा कि ज़्यादातर टाइल लगती है कई केसेस में. ऑफ कोर्स वाटर प्रूफिंग इज़ दैट वन बिग एस्पेक्ट दैट यू मेंशन्ड. एक पूल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं? स्ट्रक्चर तो बन गया, वाटर प्रूफिंग कर दिया, टाइलें चढ़ा के एपॉक्सी लगा के उसको सील कर दिया. अब एक्सटर्नल एलिमेंट्स विच आर रनिंग दैट पूल, वाटर सर्कुलेशन, ड्रेनेज, क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं बाद में? आपने पूल में एक टर्म सुनी होगी इन्फिनिटी पूल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है. मतलब जिसको पूल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता ना, वो भी बोलता है मेरे को इन्फिनिटी पूल बनवाना है. इन्फिनिटी पूल इज़ नथिंग. देयर आर 2-3 काइंड ऑफ स्विमिंग पूल जो आपने देखे होंगे. आप ओल्ड टेक्नोलॉजी पूल्स की देखोगे तो यू कैन वॉक ऑन द डेक कम्प्लीटली. जो गटर होता है, जो चैनल होता है, वो डेक के नीचे होता था साइड में. जो पुराने पूल्स देखेंगे आप, अभी कोई साउथ दिल्ली में ऐसे क्लब्स हैं आप देखेंगे उसमें साइड में चैनल है जिसमें आप बेसिकली स्पिट करते हो या कोई भी पानी का फ्लो जा रहा हो. दैट इज द बेसिक ड्रेन. हाँ, बेसिक ड्रेन. वो ड्रेन जाता है सीधा बैलेंस टैंक के अंदर और बैलेंस टैंक कनेक्ट होता है फिल्ट्रेशन सिस्टम से. फिल्ट्रेशन होने के बाद ये दोबारा नीचे के चैनल से, जो नीचे आप होल्स देखते हैं पूल के अंदर, वो इनलेट लाइन से स्विमिंग पूल के अंदर दोबारा पानी आ जाता है. अब जहाँ पे ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद आपने पूल्स देखे होंगे जिसके ऊपर ऑन ग्राउंड पे चैनल बना रहता है साइड में पूल के, राइट, जिसके ऊपर आप ग्रिडिंग्स देखेंगे एक प्लास्टिक की पूरी चैनल पे डली रहती है. एंड दैट इज ऑल्सो ड्रेनेज. इट्स अगेन गोइंग टू अ बैलेंस टैंक. इन्फिनिटी पूल आता है जिसमें किसी भी एक साइड को, पूल की को आप थोड़ा सा लोअर कर दें बाकी हाइट से, उसके साइड में एक चैनल बना दें जो कि चैनल नीचे है
विजिबल नहीं है वो। विजिबल नहीं है। आपको पानी इतना स्मूथ दिखेगा कि उसके ऊपर से वहां से पानी जाने का कोई साउंड नहीं आ रहा। राइट। और आप उसके अंदर कभी भी पानी में उतरेंगे तो आपको लगेगा कि इट्स लुक लाइक एंडलेस पूल, कि वहाँ पे पूल का पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, पता नहीं चलेगा। राइट। दैट्स द ओनली थिंग डिफरेंस इन बिटवीन अ नॉर्मल पूल और infinity pool. And infinity pools looks very beautiful if it has been made on the terrace with the glass wall. That's the beauty of infinity pool. अगर किसी ने बनाया है या कोई बनाना चाहता है तो बनाना चाहिए टेरेस के ऊपर, और वो भी वन साइड infinity वाली साइड पे ग्लास वॉल लेके। आप रोड से भी अगर देखेंगे तो आपको पूल दिखेगा पूरा पूरा, वाटर दिखेगा, स्विमिंग करते हुए लोग दिखेंगे उसके अंदर पूरे के पूरे। अब बात आती है फिल्ट्रेशन सिस्टम की, जहाँ पे आप बोलते हैं कि क्या इसके अलावा अरेंजमेंट है। पूरे स्विमिंग पूल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, एक तालाब को, एक जोहड़ को स्विमिंग पूल से अलग करता है, वो है फिल्ट्रेशन सिस्टम। राइट। एंड हाउ इट शुड बी इफेक्टिव। वाटर शुड बी सर्कुलेटेड एटलीस्ट 4 टाइम इन अ स्विमिंग पूल in 24 hours if you want a healthy water. Okay. And you have a public pool 4 times, it means we normally call it a cycle. कि what is the efficiency of filtration system to create a cycle of the pool water. Okay. So if you go to a sand filters, they create a kind of system where in the first cycle they clear the water 80%. Okay. In second cycle 85%, third cycle 90%, and fourth cycle 95%. That's a limit of The sand filters. उससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है बिल्कुल भी। Okay. उससे आगे आप 100% पे जाना चाहते हो, देन यू नीड अ कार्ट्रिज फिल्टर्स, जो उस माइक्रोन्स को बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे पूल के अंदर से। Right. अब ये 4 साइकिल जो आती हैं, लेट्स से कि आप ये कार्ट्रिज फिल्टर वही फंडा हो गया ना, जैसे हमारा आरओ वाटर लगे होते हैं घर के अंदर, या ये पुराने वाले सिस्टम्स हो गए जो पहले हमारे यहाँ पे वो होता था, एक्वा गार्ड लगा होता था, उसके अंदर एक फिल्टर रिमूव करते थे। दैट इज व्हाट इट इज, राइट? आप कार्ट्रिज फिल्टर बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कार्ट्रिज फिल्टर, राइट, अल्ट्रा वायलेट और अपना यूवी, राइट, ये जो हमने लगाया सिस्टम, इसके आगे अगर आप एक खाली चारकोल फिल्टर और लगा देना, इट्स आरओ वाटर। ओके, इंटरेस्टिंग। फिर वो पी सकते हैं पानी आप बिल्कुल पी सकते हैं उसको, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। राइट। जो रनिंग साइकिल होती है पूल की, लेट्स से कि आपको पूल 12 घंटे ऑपरेट करना है। ओके। 12 घंटे ऑपरेट करना है, सुबह 6 घंटे, शाम को 6 घंटे, तो उस 12 घंटे में आपकी 4 साइकिल भी होनी चाहिए। ये डिफाइन करता है कि आपने कितना बड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया। मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि गो फॉर फिल्ट्रेशन सिस्टम जो कि 2 से 3 घंटे में एक साइकिल कर दे। ओके। आपको जो बहुत अनहेल्दी पूल मिलेंगे, उसका रीज़न ये है कि उनकी 6 से 7 घंटे की साइकिल होती है। और 6 से 7 घंटे की साइकिल क्यों होती है कि उन्होंने लोअर कैपेसिटी के पंप्स लगाए हैं, लोअर कैपेसिटी का फिल्ट्रेशन लगाया है। स्विमिंग पूल का और एसटीपी में फ़र्क ये होता है फिल्ट्रेशन सिस्टम में कि एसटीपी फिल्टर्स आर वर्टिकल, स्विमिंग पूल फिल्टर्स आर हॉरिजॉन्टल। ओके। सो जितना स्लो पानी फिल्टर से निकलेगा और जितना वाइड एरिया पे स्प्रेड होकर निकलेगा, उतना वो क्लीन पानी होगा। ओके। और जितना आप फास्ट उसको पानी को पुश करेंगे फिल्टर के अंदर, इतना वो सैंड मीडिया डाइल्यूट हो जाता है सारा का सारा। फिल्ट्रेशन के बदले वो सेम मतलब धुंधला पानी पूल के अंदर भेजता रहेगा पूरा का पूरा। अब ये सिस्टम जो है, अगर आप अपने पूल को बहुत हेल्दी रखना चाहते हैं, आप इसको एडवांस मैकेनिज्म में जाएं, अंडर कैपेसिटी की मशीन्स ना लगाएं बिल्कुल भी। जो आपको लगे मशीन्स ने कॉस्ट बचा दी है, लेकिन रनिंग कॉस्ट तो उतनी है ना। आपने अगर कोई 6 घंटे की साइकिल वाला लगा दिया, आप 24 घंटे फिल्टर अगर चलाएंगे ना, तब जाके 4 साइकिल होंगे। ओके। 4 साइकिल के बाद आपको ना पानी में से कोई स्मेल नहीं आएगी, आपको हेल्दी फील होगा। राइट। और स्विमिंग पूल का पानी भी 3 तरीके से ही टेस्ट किया जाता है बेसिकली, एक आंखों से, एक नाक से और एक मुंह से। आपको आंखों से पानी अच्छा लग रहा है देखने में कि क्लीन है, पानी बहुत क्लीन है। लेकिन आपको अगर उसमें स्मेल ऐसी आ रही है फाउल की, आपको लग रहा है यार पानी क्लीन तो दिख रहा है लेकिन स्टिंक कर रहा है, यू नॉट स्विम इन दैट वाटर, आंखें जलने लगती हैं। थर्ड थिंग, आप पानी में अंदर उतरे। अब पानी में अंदर उतरे तो तीनों चीज़ आपकी काम कर रही हैं। आपकी आंखों में जलन नहीं होनी चाहिए, उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए। राइट। पीएच इज समवेयर अराउंड 7.2 ऑफ योर। That is the responsibility of the filtration system, right? Definitely. To maintain the pH. Yeah. Filtration system plus the person who is dealing with the filtration system. Okay. Because the manual process of chemical adding is also there. Okay. So it should be 7.2 to 7.4. Right. क्योंकि आपकी आंखों के आंसुओं का जो pH है ना, 7.2 होता है। Okay. That is perfect balance for the eyes. जैसे ही नीचे जाएगा एसिडिक हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन हो जाएगा। Okay. दोनों कंडीशन में आपकी आंखों में जलन होनी ही होनी है। सेकंड, आपने नोज से स्मेल किया पानी को कि कोई स्मेल नहीं आ रही। थर्ड थिंग, आपने जब मुंह में पानी लिया ना, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि यार ये खारा सा लग रहा है, बकबका सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। राइट। ये 3 चीज़ों से पानी आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि फिल्टर सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा।
तो जहाँ पे डिसइंफेक्शन सिस्टम की बात आती है, जो ट्रेडिशनल पूल है वो बेसिकली ऑन द केमिकल्स ऑपरेट होते हैं कम्प्लीटली। जहाँ एडवांस पूल की सिस्टम की बात आती है, लेट्स से कि इफ़ आई टेक टॉप नॉच स्विमिंग पूल्स इन दिल्ली, अमेरिकन एम्बेसी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, देयर आर सर्टेन प्राइवेट स्कूल्स एज वेल जिसमें सिस्टम लगे हुए हैं। दे आर ऑन द टेक साइड बेसिकली complete cartridge filter, no sand filter, and there is a ultraviolet filtration system as well. Okay. Ultraviolet is basically a disinfection system जो आपके water को bacteria free करता है. Okay. There is a difference between the swimming pool water and aquarium water. Aquarium need a bacteria. Swimming pool need a zero bacteria. Oh, interesting. For fish to survive. To fish to survive, you have to colonize the bacteria in the swimming they feed on aquarium. bacteria. Yes. Some people ask me कि if we are having a fish in our tank in Gurdwara Sahib, तो उसमें कैसे फिल्टर लगाना है? There are filters those who come with the bio balls as well. वो बेसिकली बायोलॉजिकल फिल्टर होते हैं। वो पर्पस उनका यही होता है कि दे क्रिएट ए हेल्दी बैक्टीरिया इन द पूल। यहाँ पे हम जो पब्लिक पूल होते हैं हम उसको बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री रखना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह से इन्फेक्शन ना हो सके। राइट। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही कि आप यूवी को इंस्टॉलेशन करें पूरा का पूरा। उसके साथ में आप क्लोरीन के जो डोजर लगा रहे हो ऑटो डोजर पे रखें उसको, ताकि डिसइंफेक्शन सिस्टम पूरी तरह से काम करे। और 60% तो आपका ऑलरेडी क्लोरीन का कंजप्शन कम ही कर देगा। आपको स्मेल नहीं आएगी पूल के अंदर क्लोरीन की। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि पब्लिक पूल पे जाते हैं वहाँ पे क्लोरीन बहुत हाई होता है। रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं उस पर इफ़ आई एम श्योर देन ऑलमोस्ट 90% पूल्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम लगे ही नहीं हुए। नहीं लगे हुए। अब डिसइंफेक्शन की बात आती है तो डिसइंफेक्शन सिस्टम हम अल्ट्रावायलेट कितने टाइम से अपने घर में यूज़ कर रहे हैं? आरओ सिस्टम्स के अंदर आज से 5 साल 7 साल या 10 साल पहले बात करें तो उसके अंदर अल्ट्रावायलेट तो नहीं आता था। राइट। इट वाज अ एक्सपेंसिव सिस्टम। आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है। राइट। तो हमें अपने पूल्स को आज के टाइम पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपने कार्स अपग्रेड कर लिए हैं, आपने घर अपग्रेड कर लिए हैं, आपने हर चीज़ को अपग्रेड कर दिया है। पूल जो है पब्लिक के यूज़ के लिए बने हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ओके। उसमें अपग्रेडेशन कुछ नहीं किया गया है। कहीं पे आप जाएंगे तो आपको MS के फिल्टर मिलेंगे बहुत ज़्यादा। एंड MS इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर स्विमिंग पूल्स। MS इज अ टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन बिल्ट अप आई थिंक 20-30 ईयर्स बैक कि MS का फिल्ट्रेशन बना देते हैं। MS के साथ विद द एज टाइम क्या होता है कि उसमें कोलेजन शुरू हो जाता है और उसका रस ना धीरे धीरे पानी में आता रहता है। राइट। देयर आर सर्टेन केमिकल्स विच रिएक्ट विद द MS एज वेल। लेट्स से कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा आप डाल देंगे अगर बैलेंस टैंक के अंदर, वो पूरा MS का जितना भी रस्ट है ना उसको सबको निकाल के पूल के अंदर फेंक देगा। राइट। देयर इज अ क्लाइंट हु वाज कंप्लीटली इन अ मेस लास्ट ईयर इन साउथ दिल्ली। दे हैव अ पब्लिक पूल एंड देयर ऑपरेटर हैज यूज्ड अ कॉस्टिक सोडा इन द बैलेंस टैंक एंड स्विमिंग पूल लाइन्स नॉर्मली सक दैट कॉस्टिक सोडा। तो जितना भी MS की लाइन के अंदर पूरा का पूरा रस था वो सारा का सारा उठा के डंप कर दिया फिल्ट्रेशन के अंदर। फिल्ट्रेशन ने उसका कलर पंप कर दिया स्विमिंग पूल के अंदर एंड स्विमिंग पूल बिकम अ कॉपर कलर। एंड पानी का रंग ही चेंज हो गया। पानी का रंग चेंज हो गया। दे कुड नॉट एबल टू मेंटेन दैट पूल इन दैट सीजन और अल्टीमेटली कंप्लेंट्स के बाद पूल शट डाउन करना पड़ा। पूरी लाइंस डैमेज हो गई थी इस पूल की। राइट। तो बेस्ट मेथड इज इफ यू कैन अफोर्ड देन स्टील इज द बेस्ट मेथड। SS304 जैसे काफी लोग अपना PVC टैंक्स के बदले स्टील के टैंक्स रखते हैं। हाँ, आजकल SS टैंक्स लगाने लगे लोग। SS टैंक्स आर वेरी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ यूज एज वेल। और स्विमिंग पूल के अंदर हम जो यूज करते हैं किसी भी तरह का मेटल जो यूज होना है दैट इज SS304 ओनली। और इंसुलेटेड टैंक्स आने लगे अब तो। इंसुलेटेड हम भी करते हैं पूरी की पूरी स्विमिंग की लाइंस को। अगर आपको हीटेड पूल बनाना है तो फ्रॉम द आइडिया फ्रॉम द डिजाइन पार्ट ओनली ऑल लाइन ऑल फिल्ट्रेशन सिस्टम शुड बी इंसुलेटेड। राइट। हीटिंग पूल्स के हम अंदर एक और प्रोविजन देके चलते हैं कि हम बाईपास कर सकें टैंक को। ओके। अपना जो बैलेंस टैंक होता है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया बैलेंस टैंक का पर्पस क्या होता है। बैलेंस टैंक इज अ समथिंग काइंड ऑफ रिजर्व फॉर द स्विमिंग पूल। जैसे हमने कभी जानवरों में देखा है ना, भैंसों में देखा है वो जुगाली करते हुए अपने रिजर्व कर लेती हैं, उसके बाद जब टाइम आता है उसको निकाल के खाना शुरू कर देती हैं। उसी तरह स्विमिंग पूल के अंदर जो अपथ्रस्ट क्रिएट होता है, लेट्स से इफ 100 पीपल आर गोइंग इनसाइड द पूल एंड द अपथ्रस्ट वाटर अमाउंट शुड बी एबल टू एडजस्ट इन द बैलेंस टैंक। ओके। एंड व्हेन द पीपल आर आउट इट कुड बी पंप्ड बैक टू द पूल। Okay. So pool should be at level when there are people getting inside. And we normally count it 12 to 15%. On the higher side we take it. क्योंकि कल को अगर आपको कोई पूल पार्टी करनी है या आपने पूल में इवेंट कर दिया जहाँ पे आपको एक्सेस लोग उतारने हैं, आपने पूल डिज़ाइन किया है 50 पीपल के लिए एक साथ अंदर जाने के लिए, आपको अगर जुम्बा क्लास लेनी है या कोई योगा क्लास लेनी है पूल के अंदर जिसमें 200 लोग एक साथ खड़े होने हैं,
आपको पता है आपको लेग मूवमेंट कराना है, जिसमें स्विमिंग पूल की पर कैपिटा कैपेसिटी जो है बहुत हाई हो जाएगी, राइट, क्योंकि उनको स्विम नहीं करना है, उनको सबको खड़े होकर एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो उस कंडीशन में आपका बैलेंस टैंक इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो एडजस्ट कर सके पूरे वाटर को। अगर नहीं होता तो क्या होगा? सारा पानी बाहर आ जाएगा। आप पानी के अंदर घुसते जाएंगे, वो डेक पे आएगा, चैनल के अंदर आएगा, चैनल के बाद पूरे डेक पे फैलता चला जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा पानी। ओके, और फिर उसके बाद वही डेक पे जिस पे लोग चल रहे हैं या जो भी गंदा है उसके साथ बाद में वो पानी अंदर आ जाएगा। इंटरेस्टिंग, So you are just killing your bacteria-free technology, bringing a bacteria inside. right. That is the importance of the balance tank. Balance tank is very important. That is built separately from the. Separately on the deck somewhere near to the pool. Balance tank should be in between the pool and filtration system. It's connected to the pool as well and to the filtration system as well. Okay. And one side it's a reserve, another side it's a better way to treat the water as well. Let's say if you are mixing some chemical which need a time. So you can operate the pool directly from the swimming pool to filtration system. Balance tank is separate, bypassed from the pool, and it can be treated. तो जो बैलेंस टैंक है उससे जो पानी निकला तो वो पूल में आने से पहले फिल्टर के थ्रू हो के आएगा? हाँ जी। ओके। बैलेंस टैंक के अंदर पानी जो है स्विमिंग पूल से आएगा या ड्रेन चैनल से आएगा। तो एक तरीके से इनलेट जो स्विमिंग पूल के अंदर है जी, वो सिर्फ फिल्ट्रेशन सिस्टम से आएगी जी। तो जब हमने एक्सपीरियंस करा जब व्हेन वी आर स्विमिंग, सो देयर इज ऑलवेज दैट वाटर इनलेट समवेयर इन द पूल दैट यू कैन फील वो पानी गश कर रहा होता है थ्रू अ पाइप और समथिंग। There are two kind of inlet system. Okay. One is through filtration system. One is from fresh line. Okay. Oh, there's a fresh line as well, of course, yes. Fresh line you will feel very cold. वो अलग उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ग्राउंड वाटर है, आ रहा है बिल्कुल, उसके नीचे आप शावर लोगे आपको मजा आ जाएगा। Right. वो फ्रेश लाइन जो है पुराने पूल्स में होती थी, अब तो है ही नहीं शायद नए पूल्स के अंदर कहीं पे भी। फ्रेश लाइन इज ऑलवेज ऑन की जितना पानी आ रहा है वो पूल को एडप्ट करता रहेगा। पूल का पानी काफी लोग पूछते हैं कि पूल में पानी कैसे कम हो जाता है। पूल के अंदर पानी खाली और खाली दो तरीके से कम होता है। एक तो इवेपोरेशन से जो आउटडोर पूल में होता है, Right. दूसरा जो बॉडी कैरी करते हैं। बॉडी कैरी करने लोग बोलते हैं बॉडी कितना ही कैरी करती है वाटर। आप बॉडी कैरी करने का अगर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो बाहर जितना डिस्टेंस बाथरूम तक है, जितना भी फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ है, चाहे वो 500 लीटर हो, 1000 लीटर हो, 2000 लीटर हो, वो पूल से ही आ रहा है। राइट। तीसरा पूल से जो पानी कम होता है वो होता है बैकवॉश में। पूल्स नीड अ बैकवॉश, स्पेशली सैंड फिल्टर्स। ओके। कॉटेज फिल्टर में बैकवॉश का कोई सिस्टम ही नहीं होता। बैकवॉश क्या होता है? बैकवॉश इज अ रिवर्स सिस्टम टू फ्लश आउट द डर्ट फ्रॉम द फिल्ट्रेशन सिस्टम। अच्छा, ओके। नॉर्मली दीज फिल्टर्स कम विद द मल्टीपोर्ट वॉल्व्स, जहाँ पे आप पूल को सिंपल ऑपरेट भी कर सकते हैं, बैलेंस टैंक से भी ऑपरेट कर सकते हैं, अपना रिंस भी कर सकते हैं मीडिया को, बैकवॉश भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आते हैं। इट इज द वे टू क्लीन द फिल्ट्रेशन सिस्टम। फिल्ट्रेशन सिस्टम इट्स अ काइंड ऑफ मोड, जैसे बॉडी का ऑटो रिकवरी मोड होता है ना, फिल्ट्रेशन में भी इसी तरह ऑटो रिकवरी उसमें वो पानी यूज हो जाता है एंड दैट इज हाउ इट ड्रेन्स। वो बाहर ड्रेन करते हैं। राइट। वो पानी रीयूज तो होएगा ही नहीं। रीयूज नहीं होगा, लेकिन हम आज के टाइम पे जो वाटर रिजर्व की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी की जहाँ पे ना हम वाटर को वेस्ट करना बंद करें। राइट। साउथ दिल्ली के अंदर एक 15 मीटर बाई 25 मीटर के पूल को भरने की जो कॉस्ट आती है समर्स के अंदर, वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास की आती है। इफ यू परचेज अ वाटर 15 मीटर बाय 25 मीटर, 15 मीटर बाई 25 मीटर, जिसकी स्टैंडर्ड डेप्थ आप 6 फीट मान लें या 7 फीट मान लें, 3 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट आती है उसकी भरने की। आज के टाइम पे हम बात ये करते हैं कि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, आप फायर टैंक जो बना रहे हैं वो बैलेंस टैंक बनाएं जिसको फायर टैंक की यूज करें। इंटरेस्टिंग। आपको फायर टैंक अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस टैंक इज हैविंग अ मोर कैपेसिटी देन योर फायर टैंक। प्लस जहां पे आपके इंसिडेंट के चांस होते हैं वो होता है समर्स पूरा का पूरा। और समर के अंदर अगर बैलेंस टैंक के अंदर लेट्स से कि अगर 50,000 लीटर ऑफ वाटर है तो उससे 10x ज्यादा पानी स्विमिंग पूल के अंदर है साथ में। यस। आपके पास कभी पानी खत्म ही नहीं होगा। राइट। सो व्हेन यू आर यूजिंग दैट वो रीपंप तो हो ही रहा है उसके अंदर, आ ही रहा है। आप उस सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करें। मतलब देयर आर सर्टेन पीपल दोज आर वेरी स्मार्ट आर्किटेक्ट्स एज वेल, दोज हु नॉर्मली आस्क अपफ्रंट की ज्ञानेंद्र जी ऐसा नहीं करना चाहिए कि फायर टैंक को कनेक्ट कर दें। तो वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड दिस आइडिया कि फायर टैंक एंड बैलेंस टैंक शुड बी सेम। बहुत अच्छा आइडिया है ये। दिस मेक्स सेंस। कॉस्ट सेविंग या प्लस एफिशिएंसी ऑफ द वाटर। एनी कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग्स स्पेशली जहाँ फायर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पानी अलग से रिजर्व बनाने की बजाय, ये यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस कैन बी डन। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इफ यू वांट टू यूज द पंप्स एज वेल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फायर, हम उसको प्लांट में भी क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने 4 पंप लगा रहे हैं सेपरेटली, वी विल पुट अ 1 पंप विच इज हैविंग अ मच हायर कैपेसिटी, लेट्स से 15 HP 20 HP का एक पंप लगा देते हैं, जहाँ पे 5 HP के 4 पंप लगने थे। वो 15 HP या 20 HP का पंप 4 फिल्ट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में आराम से चल सकता है। बट उसको अगर 1 चैनल पे फायर पे चलाओगे, इट विल बी हैविंग ऑसम फ्लो। राइट। जबरदस्त फ्लो होगा। मतलब मेरे को लगता है वो 15th स्टोरी तक भी प्रेशर पहुंचा सकता है, इतना फ्लो होगा उसके अंदर। राइट। यू टॉकिंग अबाउट द फ्लो,
एंड यू टॉकिंग अबाउट पम्प्स, थोड़ा सा प्लम्बिंग एक्सप्लेन करो ना एक बार कि स्विमिंग पूल में प्लम्बिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, हाउ डज इट फ्लो, किस तरीके से कनेक्शंस बनते हैं? तो जब प्लम्बिंग की बात करते हैं तो जो अगर बात करें कॉस्ट इफेक्टिव की सबसे ज़्यादा, पीपल नॉर्मली यूज पीवीसी लाइंस। व्हेन वी टॉक अबाउट अ हीटेड पूल, तो पीवीसी और ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती हैं, वे यू हैव टू होल्ड द टेम्परेचर, जिसमें सीपीवीसी और यूपीवीसी काम आती है बेसिकली। और हीटेड पूल में सीपीवीसी और यूपीवीसी, अच्छा ओके। हाँ, तो आई थॉट इंसुलेटेड पाइप्स लगते होंगे जैसे एसीज में लगते हैं। पीवीसी की एक्चुअल में थिकनेस नहीं होती ना बिल्कुल भी, जिस वजह से वो हीटेड को होल्ड नहीं कर पाती। और मुझे लगा बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम लगता होगा, जैसे कॉपर के पाइप्स और वो इंसुलेटेड एंड एवरीथिंग, उतना वाला टेम्परेचर वैसे भी नहीं रीच होता होगा, राइट? वो रेफ्रिजरेशन का पार्ट है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पर कॉपर पाइप्स इंसुलेटेड वाले लगते हैं और वो सब, जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स that is inside the heat pump actually. Copper pipes are used for the compression. अच्छा ओके, बट नॉट फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर। अच्छा ओके, फेयर इनफ। पूल का जो हीटिंग मैकेनिज्म है ना, वो बहुत डिफरेंट है। इट्स अ हाई फ्लो हीटिंग मैकेनिज्म। आप इस तरह समझें कि आप घर में अगर गीजर लगाते हैं, गीजर के अंदर पानी स्टोर होता है, पानी गर्म होता है, उसके बाद टैप से आता है। आपने रिसेंटली पिछले 4-5 साल में कुछ इस तरह के लाइन हीटर्स देखे होंगे, जिसको आप डायरेक्टली टैप में लगाइए किचन की में, और उससे पानी आ रहा है, जिससे आप थोड़ा सा गर्म पानी से बर्तन धो सकते हैं। राइट, दीज आर इनलाइन हीटर्स। हम स्विमिंग पूल में इनलाइन हीटर्स भी लगाते हैं, बट इनलाइन हीटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिकॉज दीज आर हीटर्स डायरेक्टली, इट्स नॉट अ कंप्रेसर बेस। पूल्स के अंदर लगते हैं कंप्रेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। हीट एक्सचेंजर्स में भी इफ यू सी द इंपोर्टेड सिस्टम, लेट्स से मेड इन चाइना, एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू अ चाइना ओनली। इट मे बी अ पुट अ स्टैम्प ओवर देयर कि मेड इन यूरोप। मेड इन यूरोप इज नथिंग, बिकॉज वी डोंट सेल एनीथिंग मेड इन एशिया, सो एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू अ चाइना। चाइना के जो बेसिकली हीट पंप्स आते हैं वो स्पायरल बेस होते हैं। स्पायरल बेस मतलब उनका हीट एक्सचेंजर जो है स्पायरल की तरह बिल्कुल राउंड राउंड होता है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ करते हैं, वंस यू इंस्टॉल विद द क्लाइंट्स इट्स ओके, कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम या मतलब कॉस्ट लोअर सिस्टम अगर चाहिए आपको, क्लाइंट बोलता है कि सस्ता सिस्टम लगाओ। इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है फर्स्ट सीजन के बाद से, जहाँ पर डी स्केलिंग के लिए जाते हैं सिस्टम की। आप किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हो, उसके अंदर स्केलिंग तो होनी ही होनी है, राइट, और उसकी एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम हो जाती है, राइट। हम जिस हीट एक्सचेंजर्स को लगाते हैं, दे आर बेसिकली शैलन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। इट्स अ बिग स्टील ट्यूब जस्ट लाइक अ बजूका, उसके अंदर मल्टीपल स्टील रॉड्स होती हैं, होल्स होते हैं। कभी आपको क्लीन करना है, दोनों साइड से उसको ओपन करिए फुल थ्रू, जस्ट लाइक ए गन, क्लीन इट प्रॉपर्ली एंड इट्स रेडी टू गो। परफोरेटेड होती है क्या वो? व्हेन यू सेड होल्स होते हैं उसमें दोनों तरफ से, एज इन लाइक इट्स अ सॉलिड पाइप? इट्स अ मेटल सॉलिड पाइप, अच्छा ओके, व्हिच इज हैविंग अ होल्स इनसाइड एंड SS304 रॉड्स इनसाइड। अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसे पाइप्स देखे हैं जो सरफेस पे होल्स होते हैं, एंड देयर सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसमेंट्स, इनकेसिंग होती है उसकी अलग से। सो एक होता है परफोरेटेड पाइप जिसके ऊपर होल्स होते हैं सरफेस पे, एंड देन देयर इज एन इनकेसिंग ऑफ अ सॉलिड पाइप ऑन इट। सो वो करते ही हैं कि उसको क्लीन करने के लिए या डी स्किल करने के लिए वो परफोरेटेड पाइप को बाहर निकालते हैं। 2 मूवमेंट्स के बाद वो अपने आप ही क्लीन हो जाता है, एंड दे जस्ट पुट इट बैक। पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई हैव सीन दीज पाइप्स। इसमें स्टील के पाइप्स स्लीव्स के अंदर होते हैं पूरी तरह से। These are pressed inside, ताकि उसका जो हीट का जो पूरा का पूरा उसको आउटपुट है वो मिल सके। हीट एक्सचेंजर्स की जब हम बात करते हैं या हीट पंप्स की हम बात करते हैं, वी नॉर्मली काउंट input of the heat exchanger. Let's say if there is a 13 kilowatt compressor in that machine, we count it's a 13 kilowatt machine. There are people those who say it's a 52 kilowatt, 51 kilowatt. There is a difference between the input of the heat exchanger and output. 51 kilowatt is the output of the heat exchanger actually, or that machine only. So plumbing की जहाँ पे बात करते हैं PVC, UPVC, CPVC की, ये बहुत सिंपल सा एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप बात करें, अगर आपके पास पंप्स हैं, पंप्स आर कनेक्टेड टू द फिल्ट्रेशन सिस्टम, and there is a direct input to the pumps is either a swimming pool, either a balance tank. These are the 2 inputs normally. Fresh line का कोई connection नहीं होता because these are very high flow pumps. तो fresh line will feed water directly to the swimming pool? Directly to the pool or balance tank. अच्छा, और the balance tank. There are both ways. अच्छा, okay. पानी को ट्रीट साल में एक ही बार करना पड़ता है, स्पेशली जब आप पूल को खाली करते हो, तो शुरू में आपने जो पानी भरा उसको आपने सेटल करना और अच्छा, मैं फॉर सम रीजन आई वाज थिंकिंग कि फ्रेश लाइन से सीधा पहले फिल्टर पे जाता होगा, बट जरूरत ही नहीं है। जब पूल से ही पानी फिल्टर में जाके वापस फिल्टर हो रहा है जी, तो यू कैन एक्चुअली फिल अप द स्विमिंग पूल डायरेक्टली। आपके पास पंप है, पंप का इनपुट जो आ रहा है वो बैलेंस टैंक से या स्विमिंग पूल से आ रहा है, राइट, और वो डायरेक्टली जो आउटपुट दे रहा है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम को दे रहा है। ओके। फिल्ट्रेशन सिस्टम में चाहे आप सैंड फिल्टर लगाएं या कार्ट्रिज फिल्टर लगाएं,
उसमें इनपुट आ रहा है, उसमें से फिल्टर होने के बाद पानी सीधा का सीधा आपका जा रहा है अल्ट्रावायलेट्स के अंदर, अगर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लगा हुआ है। वो नहीं लगा हुआ तो डायरेक्टली पानी जो है वो पूल के अंदर जा रहा है, डायरेक्टली लाइन। पूल के नीचे इनलेट लाइन होती हैं, 2 और 3 लाइंस होती हैं बेसिकली। हीटिंग पूल के अंदर हम ज़्यादा ऑप्शन देते हैं ताकि जो हीट का डिस्पर्समेंट है वो पूरे पूल के अंदर इक्वली रहे। नहीं तो होगा क्या कि आप बीच में आप जहाँ पे पानी निकल रहा है वहाँ पे आपको गर्म होगा और बाकी सारी जगह पे ठंडा होगा। एंड वी हैड अ बैड एक्सपीरियंस एज वेल। पीपल नॉर्मली ब्रिंग अ थर्मामीटर इन देयर पॉकेट टू चेक द वाटर टेम्परेचर। एंड वर्ल्ड एक्वेटिक फेडरेशन जो है उनकी भी जो गाइडलाइन है ना हीटिंग पूल की, they are 25 to 28 degree. To swim in the water, the best temperature is 25 to 28 degree for the human body. Right. We still try to keep it around somewhere around output is 29 or 30, but पूल में आते आते वो 27 to 29 के बीच में रहता है। कुछ पॉइंट पे 27 रहेगा, कुछ पॉइंट पे 28 रहेगा, कुछ पे 29 रहेगा, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट रहता है। When you start swimming ना तो वो ऑटोमेटिकली मिक्स होना शुरू हो जाता है। स्विमिंग पूल के अंदर जहाँ पे हीटेड पूल होते हैं वहाँ आप अगर आप जाएंगे, फर्स्ट आप जब विंटर्स के अंदर स्विमिंग पूल में जाएंगे, आपकी जो अपनी कॉन्शियस है वो ये बोलेगी कि ये पानी हीटेड नहीं है, ये ठंडा पानी है। राइट। उसका एक बेसिक रीज़न है कि आपका कोर टेम्परेचर 36 डिग्री होता है आपकी बॉडी का। 36 से नीचे आपको विंटर्स में जो भी आप टच करोगे, आपकी बॉडी टच करेगी, वो आपको ठंडा ही लगेगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू रियलाइज दैट इट इज वार्म। Within a one lap you will realize it's a normal water. Yeah. Your body had adjusted to the water and it's a normal for the swimming. अब फिर वो बाहर की सरफेस एयर जो होती है वो ठंडी लगती है और वो बॉडी आपको वार्म फील करती है। स्विमिंग पूल के अंदर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यही होती है कि अगर आप हीटेड स्विमिंग पूल बना रहे हो तो एम्बियंस नीड टू बी कंट्रोल्ड। राइट। द एम्बियंस एयर, एम्बियंस टेम्परेचर, देयर शुड बी नॉट मोर देन 3 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। लेट्स से द वाटर इज 28 डिग्री, देन एम्बियंस शुड बी 31-32 डिग्री। एक सेकंड, यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडोर पूल राइट नाउ? इंडोर पूल्स, यस। तो देन वी आर मेंटेनिंग द एम्बिएंट एयर आल्सो? या एंड ऑफ कोर्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज वेल। अच्छा, ओके। नॉर्मली सो फिर वहाँ फिर HVAC का सिस्टम and this work together? Not HVAC. It should be dehumidifiers only. Dehumidifier only. Dehumidifiers. उस surface में उस एरिया में HVAC नहीं होगा? HVAC नॉर्मली समर्स में भी यूज़ नहीं होता, विंटर्स में भी यूज़ नहीं होता। HVAC का सबसे बड़ा इम्पैक्ट और प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर उसे समर्स में भी यूज़ करेंगे ना, जैसे आप पूल से निकलेंगे आपको ठंड लगेगी। राइट। और ज़्यादातर क्लाइंट्स, बच्चे, फीमेल्स, मेल सब बीमार जो होते हैं वो एक्चुअली बीमार होते हैं जब आप पूल से निकल के चेंज रूम तक जाते हो। उसमें जो आपको टेम्परेचर शॉक मिलता है, राइट, उससे आप बीमार होते हैं बेसिकली। तो इसलिए HVAC वी नेवर रिकमेंड, वी रिकमेंड ओनली डिह्यूमिडिफायर्स। डिह्यूमिडिफायर्स नॉर्मली सारा जो इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी होती है उसको निकाल देते हैं। आज के टाइम पे अगर आप अपने फ़ोन पे चेक करेंगे, ह्यूमिडिटी का लेवल इज़ 85 और 90। राइट। एंड ड्यू पॉइंट इज़ अराउंड समवेयर 25। सो आई नॉर्मली एक्सप्लेन कि ड्यू पॉइंट में और ह्यूमिडिटी में डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्या है ये चीज़। मैं नॉर्मली लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ, जो ड्यू पॉइंट है ना वो आपका AC चलाने का पॉइंट है कार के अंदर। अगर आप उससे नीचे AC को चलाएंगे तो आपके ड्यू क्रिएट हो जाएगी विंडोज़ पे पूरा का पूरा। राइट। आप अगर 25 आपका ड्यू पॉइंट दिखा रहा है, आप 25 से नीचे AC को रन ना करें, अदरवाइज आपके कार में पूरे में जो ड्यू पॉइंट्स का इम्पैक्ट दिखेगा पूरा पूरा। राइट। इन दिस सीजन स्पेशली व्हेन द ह्यूमिडिटी इज समवेयर अराउंड 90। राइट। And breathable is somewhere around 45 is very good. Yeah. You feel very comfortable, especially the people those who are having asthma or bronchitis. उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा सके। Right. और सभी के लिए है सर, स्पेशली एथलीट्स के लिए। भाग ही नहीं पाते ह्यूमिड में, आप यू पैंट आउट वेरी इजीली। स्विमिंग पूल्स में ये टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ होती है। Right. और लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि कॉस्ट बहुत आ जाती है इसकी। या आपको अगर ह्यूमिडिटी फ्री पूल चाहिए, अगर आप ये नहीं लगाते हैं हीटेड पूल के अंदर, तो आपकी जितनी भी RCC की सीलिंग्स हैं या मेटल का, सब पे पूरा वाटर ड्यूज आपको नजर आएंगे। वॉल्स पे सारा के सारा वाटर आपको नजर आएगा। कोई भी सरफेस होगी सब वेट हो जाएगी पूरी की पूरी। राइट। और आपको एक थोड़ा सा जो विजिबिलिटी है वो आपको ठीक उसी तरह की लो दिखेगी जो आज के टाइम पे आप अगर लेट्स से कि किसी भी पार्क में जाते हो शाम को या सुबह जाते हो, हल्का सा फॉगी सा दिखता है ना, दैट इज एयर। अब आ गया टाइम कहानी होगा। मैं कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, इसी बात पर मैं जानबूझ के जंप इन किया है। वन फार्म हाउस वी डिड, मैं डोर विंडोज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मैंने एल्यूमिनियम के डोर विंडोज़ लगाए उनके फार्म में। उनके कोर्टयार्ड ऐसा, इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज कोर्टयार्ड, फार्म खुला है, 2.5 एकड़ का फार्म है, लेकिन छोटी कोठी बनाई उन्होंने 400-500 गज की। और सामने अब पूल का शौक है सबको, राइट, कि घर में पूल होना चाहिए। दैट इज़ व्हेन यू फील दैट लग्जरी कि देखो यार मैंने फाइनली अब अराइव्ड, मैंने ज़िंदगी भर मेहनत करके अब एक स्विमिंग पूल वाला घर मेरा है, राइट। बिल्कुल सामने कोर्टयार्ड पे छोटा सा स्विमिंग पूल है, लेकिन वेदर यही था, रेनी सीजन, मानसून था। नाउ द पर्सन बेसिकली डिड नॉट लिव इन दैट हाउस इनिशियली।
तो वो पूजा करने के लिए जब उन्होंने सोचा कि अब चलिए 2 महीने तक घर बंद था, गर्मी से ट्रांजिशन हुआ मानसून्स का और मानसून से ठंडक की तरफ चला गया वेदर, पूल भरे हुए हैं बारिश की वजह से। हुआ यह है कि क्योंकि यूपीवीसी और एल्यूमिनियम डोर विंडोज़ ऐसे होते हैं कि चारों तरफ से सील हो जाते हैं, अंदर सारे में कंडेंसेशन बन गई बिकॉज दैट वाटर वॉज इवेपोरेटिंग व्हाटएवर। अगर एक विंडो भी खुली हुई है उसकी वजह से सारा मॉइस्चर घर में जा रहा है। सो व्हेन ही अराइव्ड इन हिज हाउस ही गेव मी अ कॉल, कहते ऋषभ ये क्या करा यार तूने, किस तरीके की खिड़कियाँ लगाई हैं? मैं कहा सर क्या हुआ? कहते यार नदी बह रही है मेरे घर में, पूरे फ्लोर पे पानी भरा हुआ था। यार आधे इंच का पानी भरा हुआ है, ये क्या हो गया? मेरी रूफ तो लीक नहीं हो रही। एंड आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू हिम दैट व्हाट योर हाउस राइट नाउ नीड्स इज नंबर 1 वेंटिलेशन एंड अ डीह्यूमिडिफाइंग सिचुएशन। कि आई एम सॉरी इस वेदर में होगा। अगर आपने सब कुछ पैक करके छोड़ दिया तो जो ह्यूमिडिटी बनी है घर में वो पानी कंडेंस होना ही है ठंडे टेम्परेचर में, बिकॉज आप गर्मी से मानसून पे है और आप ठंडक की तरफ जा रहे हो, वो बनना ही बनना है। And it was such a hassle for me to explain to that gentleman कि this is the effect of basic study of water that we've done in school कि पानी evaporate होता है फिर condense होता है। बस हमें उसको humidity को study करना और समझना है कैसे होगा, और indoors है तो dehumidify करना है आपको। Sir, some failures during your tenure in the swimming pool industry, आपने अपनी इंडस्ट्री में कुछ देखे हो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानी जहाँ कुछ मेजर फेलियर्स हुए हैं या माइनर फेलियर्स हुए हैं? मे बी वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दोज फेलियर्स। फेलियर्स इसमें अक्सर होते रहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू टच द स्पेशलिस्ट। वी बिलीव कि स्विमिंग पूल ही तो है, कोई भी बना देगा, आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर देगा, हमारा सिविल वाला बना देगा। वन ऑफ द वेरी बिग फार्म हाउस इन द 12 एकड़ आई हैव सीन द स्विमिंग पूल। मैंने पूछा, मैंने देखा स्विमिंग पूल, मैंने ये क्या किया हुआ है? मैंने ये किसने बनाया? बोला हमने ही बनाया खुद। मैंने किसी से पूछ लेते, सलाह ले लेते। उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया विदाउट रीइंफोर्समेंट, और उसमें मेजर क्रैक्स आ रखे हैं पूरे पूल के अंदर। क्रैक्स इतने कि उसमें पानी लीक हो रहा है। विदाउट रीइंफोर्समेंट एज इन ब्रिक वॉल बना के और सब ब्रिक वॉल, आरसीसी डाल के मतलब लोड बेयरिंग वॉल्स नहीं थी, वो नहीं थी, आरसीसी वॉल्स नहीं थी। लोड बेयरिंग वॉल भी अगर होंगी तो विदाउट रीइंफोर्समेंट उसकी स्ट्रेंथ कैसे होल्ड करेगा? व्हाट वर द वॉल्स? आरसीसी वॉल्स थी। आरसीसी तो रुकी कैसे वो? टिकी किस चीज पे? वो फर्मे खड़े करके बस कंक्रीट पोर करके। हाँ नाइस। दूसरी चीजें मैंने कई बार देखी हैं, पीपल नॉर्मली आस्क टू अ लेमैन एंड लेमैन गिव अस एडवाइस कि ब्रिक वॉल पे बना देते हैं पूल और सामने से प्लास्टर कर देंगे, ऊपर से टाइल तो लगानी है। पानी की टंकी जैसे बनती है। ब्रिक वॉल नॉर्मली एब्जॉर्ब द वाटर, जितना कोशिश हो सकती है उतना एब्जॉर्ब करेंगे, एंड यू विल नॉट कम टू नो इजीली। जब वो लीकेज शुरू होगी ना, इट विल क्रिएट अ हॉलो स्पेस इनसाइड, जहाँ पे भी आपकी नींव में होगा या कहीं पे भी वो हॉलो स्पेस क्रिएट कर देगा। थर्ड बिगेस्ट मिथ इज, पिछले जो 15-20 साल में मैंने देखा है कि पीपल हैव सेलिंग अ रॉन्ग प्रोडक्ट, जो कि मोज़ेक टाइल्स हैं। Okay. Mosaic tile is not meant for the swimming pool at all. Okay. These are basically a designer wall tiles, which are very cheaper in terms of the cost. Let's say if I'm a person who want to save a bigger margin, I'll recommend कि सर mosaic tile लगा लीजिए. But mosaic tile is as much as problem creating just like a concrete pool directly. मतलब आप क्यों लगाते हैं लोग डिजाइन फीचर के लिए? मोज़ेक टाइल कभी स्विमिंग पूल के लिए बनी नहीं थी। राइट। स्विमिंग पूल्स के लिए जो वर्ल्ड बॉडी की अप्रूव्ड टाइल है वो 121 mm by 247 mm की है, जो 5.5 by 5.10 इंच के आसपास। सिरेमिक। या एंड दीज आर नॉन एलगी टाइल्स, बनी स्विमिंग पूल के लिए, अप्रूव्ड स्विमिंग पूल के लिए। वन ब्रांड ओनली मेक इट, आई थिंक जॉनसन। ओके। और दे हैविंग एज इन दिस टेक्नोलॉजी कि उनकी टाइल्स जो है मतलब एक बार लगाइए 15 साल भूल जाइए। राइट। दे गिव अ नीट एंड क्लीन पूल लुक। लेकिन जहाँ आपको लगता नहीं कि मेरे को डिज़ाइनर पूल चाहिए, मेरे को ऐसा पूल चाहिए, वैसा पूल चाहिए, और आप टाइल के साइज से सेक्रीफाइस करते हो और टाइल छोटी में आ जाते हो डिज़ाइनिंग करते करते, आप उतना ही परसेंट उसके लीकेज के चांस, उसके डैमेज के चांस बढ़ा देते हो। Because the joints are going to be more. How much epoxy you are going to put? Normally आप अगर देखेंगे इसकी जो मोज़ेक आती हैं, मोज़ेक में मल्टीपल वेरिएशन आती है, मल्टीपल डिज़ाइन आती है, बेस कुछ होता नहीं है इसका। मतलब आप खाली डिज़ाइन के लिए पुट कर रहे हो। आप जैसे ही उसको क्लीन करना शुरू करते हो ना, मैंने ऐसी ऐसी साइड देखी, एक साल में बोरे भर भर के टाइल निकल रही है। Right. आप सक्शन मारोगे, बोरे भर के टाइल निकल रही हैं। क्यों? बिकॉज ओनर इज सुपर स्मार्ट, ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन कि करना क्या है क्या नहीं करना। पैसा उनका लगा सकते हैं, उसमें क्या है। बट स्टैंडर्ड पूल्स और गवर्नमेंट के अंदर जो अप्रूव्ड हैं, ओनली एंड ओनली जॉनसन इंडिया स्विमिंग पूल टाइल्स 120 by 247 121 mm by 247 mm। Okay. दिस इज द ओनली टाइल विच इज अप्रूव्ड। आई थिंक 8 और 10 mm की टाइल आती है, हाईली ड्यूरेबल। सर ये टाइल का कलर ब्लू ही क्यों होता है?
क्योंकि पानी का अपना कोई कलर नहीं होता। राइट। कई लोग मेरे से केमिकल्स के बारे में पूछते हैं एंड इस इंडस्ट्री को जब मैंने फिट्सो में ड्राइव किया, वी स्टार्टेड ट्रेनिंग अ मैन पावर एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द स्किल गैप इन द इंडस्ट्री। इसमें जो प्लांट ऑपरेटर होते हैं उनका कोई कोर्स ही नहीं है इंडिया के अंदर। स्किल इंडिया के अंदर भी कोई कोर्स नहीं है, कई चीज़ों में नहीं है अभी भी। उनको जब कोई कोर्स नहीं है तो उनको किसने सिखाया? उनको जिसने सिखाया जैसा उन्होंने सीखा वैसा सीख के आ गए। तो देयर इज अ केमिकल विच इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। ओके। And it comes in the quality of pesticides as well. It's a poisonous chemical completely, and we use rarely in the pools, outdoor pools, जहाँ पे rainy season में बहुत ज़्यादा कीड़े, water borne कीड़े स्विमिंग पूल्स के अराउंड हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं कॉर्नर्स पे। तो we use in very small quantity, but this chemical comes in the blue color. तो people start feeling कि इससे पानी का कलर ब्लू होता है। एंड दे स्टार्टेड यूजिंग फ्रीक्वेंटली कि पानी को नीला करना है तो कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, हिंदी में जिसको नीला थोता बोलते हैं। और ये जहर है प्रॉपर्ली, पॉइजनस है। अब जहर तो हम खाने में भी खा रहे हैं, अगर क्वांटिटी आप बहुत थोड़ी रखोगे तो इम्पैक्ट नहीं करता। तो इसका यूज़ पता होना चाहिए कब यूज़ करना है। तो लेट्स कम बैक टू द बेसिक क्वेश्चन कि टाइल का कलर ब्लू ही क्यों होता है। टाइल का कलर अगर ब्लू होता है तो वाटर जो है ना वो बिल्कुल सी ब्लू दिखता है। टाइल का कलर अगर वाइट होता है तो वाटर जो है बहुत लाइटिश ब्लू दिखता है। और दूसरी चीज़ डिपेंड करता है कि इंडोर पूल है आउटडोर पूल है। एक्चुअल में पूल में रिफ्लेक्शन जो है स्काई का दिखता है। राइट। तो ब्लू दिखता है इसलिए। तो टाइल का जो कलर आता है वो लाइट ब्लू आता है बेसिकली, जो बहुत पॉपुलर कलर है। स्विमिंग पूल्स में, ओलंपिक में भी वही कलर लगता है और दैट इज़ द बेस्ट कलर। स्विमिंग पूल में बेसिकली दो ही कलर यूज़ होते हैं ओलंपिक में, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक इज़ फॉर द शोइंग अ गाइडलाइन जो स्विमर्स के लिए होती है कि कितना आपको सेंटर में चलना है, कहाँ पे वॉल खत्म हो रही है, टी मार्क जहाँ पे, वहाँ से 2 मीटर वॉल है, यू कैन टेक अ टम्बल टर्न ओवर देयर। तो वो पूरी गाइडलाइन होती है ओलंपिक स्विमिंग पूल्स की। बट कलर्स आर ओनली 2, ब्लैक एंड ब्लू फॉर स्विमिंग पूल्स। उसके अलावा जो भी कलर्स हैं, इट मे बी टॉकवाइज ब्लू, इट मे बी पीकॉक ब्लू, जो भी डिज़ाइनर पूल बन रहे हैं उसमें तो मल्टीपल कलर हैं। और कॉमर्शियल पूल को छोड़ के अगर डिज़ाइनर पूल की बात करते हैं तो आई रिकमेंड कि गो फॉर 2x2 इंचेस स्टाइल which are I think available in the market in Gujarat market as well largely. They are also good. There are imported quality of Malaysia as well. They are also equally good designer pools में. But 2x2 से नीचे जाना is sacrificing your pool in terms of 2x2 इंच का स्क्वायर टाइल्स जो जी साथ में जुड़ते जाते हैं। राइट। 2x2 की इंच की आती हैं, 4x4 इंच की भी टाइल आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है देखने में। राइट। मतलब अगर कहीं पे ऑप्शन मिले कि आपके पास ऑप्शन है कि आप 4x4 की लगा सकते हैं इंच की टाइल, इट्स बेटर टू गो फॉर इट। इट्स बेटर क्योंकि आपका चांस उससे हाफ हुआ है खाली। लेकिन उससे नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे, व्हाट शुड नॉट बी इंस्टॉल इन द पूल, एक तो ग्लास मोज़ेक टाइल नहीं लगानी चाहिए। ओके। एक गुजरात की कंपनी बनाती है 1x1 इंच के आसपास की, या 2x2 इंच के आसपास की भी आती है वो टाइल, एंड दैट इज़ अ प्योर ग्लास मोज़ेक। ओके। अगर वो टूटती है तो ग्लास की तरह ही होती है बिल्कुल। वो सबसे ज़्यादा जो इंजरीज देती है स्विमर्स को, और वो टूटती हैं। हमने फरीदाबाद में एक वो बहुत रिनोन्ड स्कूल है जिसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट रिनोवेशन किया था, मानव रचना स्कूल सेक्टर 14 में। उसके अंदर यही टाइल लगी हुई थी और इसके जो कट्स होते हैं वो इतने डीप कट होते हैं कि आप पूरे सीजन में स्विमिंग नहीं कर पाएंगे फिर दोबारा। हमने पूरा चेंज करके हमने ये जॉनसन इंडिया का प्रोडक्ट लगाया, उसके बाद आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग। टाइल मटेरियल के अलावा और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं? आई अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर कमांड करता होगा कि किस तरीके की रीइंफोर्समेंट जाएगी, कौन से ग्रेड का कंक्रीट डलेगा, बट यूजुअली प्राइवेट पूल्स में लेट्स से व्हाट काइंड ऑफ अ कंक्रीट आर यू लुकिंग एट, व्हाट काइंड ऑफ अ रीइंफोर्समेंट आर यू लुकिंग एट? मतलब कुछ एलिमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल क्या लगता है, मैं वो आपसे समझना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर रीइंफोर्समेंट की बात करें, रीइंफोर्समेंट में मतलब जो आप सरिया यूज़ करें, मतलब 10 से 12 mm से नीचे ना जाएं बिल्कुल। 10-12 का कॉम्बिनेशन रखें, आप छोटा पूल भी बना रहे हैं तब भी, क्योंकि आप एक बार पूल बनाना है, बार बार बनता नहीं है। राइट। और जहाँ पे कंक्रीट TMT के अलावा GFRP यूज़ हो सकता है? हमने तो TMT ही यूज़ किया है बेसिकली इसमें पूरा का पूरा, क्योंकि अब आ गया है GFRP, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। एंड कंक्रीट के ग्रेड की बात करें तो M25 से नीचे ना जाएं। M25 से ऊपर अगर आप जा सकते हैं, अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं, देन M35 इज़ वेरी गुड। अदरवाइज M25 इज़ द लोएस्ट वन। M25 से नीचे अगर कोई भी एडवाइस करे M20 चले जाइए, M15 चले जाइए, डोंट गो फॉर इट। Probably not a good advice. Not a good advice. And always go for a one layer of gunite, which is again on the iron mesh. चाहे आप उसको मतलब 50 mm करें, कुछ भी करें, लेकिन एक गुनाइटिंग की लेयर जरूर करवाइए। Okay. It will hold your pool for a very long duration.
और एक्सपर्ट से काम करवाएं, लेमैन से काम ना करवाएं, जहां आपकी कॉस्ट तो सेव होगी, लेकिन जब वो काम करके चले जाएगा, आप उसकी पूरी पेमेंट कर चुके हैं 1 साल बाद, उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होंगी उस प्रॉब्लम्स का आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि बहुत अच्छी एडवाइस है ये। स्पेशली वो वाला जो स्टेज आया ना ग्रेनाइटिंग के तुरंत बाद या ग्रेनाइटिंग से पहले या वाटर प्रूफिंग वाला स्टेज है, आजकल प्रोफेशनल्स ऐसे अवेलेबल है इंडिया में जो आपको एक लेटर हेड पे 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25 साल की गारंटीज देते हैं। दे आर प्रॉपर सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, दे हैव डन दोज कोर्सेज, दे अंडरस्टैंड द मटेरियल, उन्हें पता है एप्लीकेशन कैसे करनी है, कॉर्नर कटिंग करनी नहीं है, और ऑन पेपर गारंटीज मिल रही हैं आज की डेट में। इवन इफ यू आर डूइंग द वाटर प्रूफिंग फॉर योर टेरेस और योर होम और वट एवर, आजकल रिटन गारंटीज मिलती हैं लोगों से। दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस सर, क्योंकि मटीरियल और प्रोफेशनल दोनों टॉप नॉच होंगे तो काम बहुत अच्छा होगा। इवन हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लेट्स से कि वी हैविंग पूल विच इज़ रनिंग अराउंड द ईयर, जिसको आप खाली नहीं कर सकते, उसकी मेंटेनेंस के लिए जहाँ पे हमने मोज़ैक वाले पूल हैंडल किए हैं, ग्लास वाले पूल हैंडल किए हैं, वी हैड इपॉक्सी विच कैन पेस्ट द टाइल्स अंडर वाटर एज वेल। ओके। और हमने किया है, मतलब 2-2 साल तक हमने पूल खाली नहीं किया। भरे हुए पानी के अंदर, टाइल के अंदर इपॉक्सी यूज़ करके भी, भरे हुए पानी के अंदर टाइल निकाली है या नई टाइल लेके गए हैं, उस पर इपॉक्सी पीछे से लगाई, पानी में जाके अंदर सेटल कर दी टाइल को, वो सेटल हो गई वहाँ पे। इंटरेस्टिंग। इस तरह की टाइल्स को हम टेम्परेरी सॉल्यूशन ये मानते हैं कि अगर आपने पूल 6 महीने खाली नहीं करना, आपके पास बहुत मेजर डैमेज हो रहा है जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कट्स लग रहे हैं, उसको टेम्परेरी हम ये सॉल्यूशन दे देते हैं। वंस द पूल इज एम्प्टी, उसके बाद उसका परमानेंट सॉल्यूशन कर देते हैं। राइट। अब जहाँ पे ये बात आती है कि टाइल्स हमने कौन सी यूज़ करी और उसका चिपिंग आउट कैसे हो रहा है, ओके, और एडेसिव की बात करते हैं, तो इसमें वैरायटी ऑफ इपॉक्सीज अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ पॉलीमर अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ रेजिन्स अवेलेबल है, क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर हर वो प्रोडक्ट यूज़ होता है जो आप बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर रिस्टोरिंग साइट पे यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है। लेट्स से वी डू काइंड ऑफ एंकर रीबारिंग, वी डू एंकर फास्टनिंग एज वेल। और स्विमिंग पूल के जो एंकर्स होते हैं, बेसिकली स्विमिंग पूल में लोगों को एंकर दिखते नहीं हैं कहाँ पे, आप लेन्स देखते हैं पूल के अंदर, दे आर बेसिकली कोर कटिंग पार्ट, और उसके अंदर एंकर फास्टनिंग होती है पूरा का पूरा, एंड दैट्स कंप्लीटली ऑन द पॉलीमर रेजिन बेस, जिसको इमीडिएटली लगा के ड्राई करना होता है। इट टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स की वो ड्राई हो जाए, और उसके अंदर 2.5 टन की स्ट्रेंथ आ जाती है उसके बाद इमीडिएटली। नाइस। सो दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब्स। दिस इज फॉर द क्लिपिंग ऑफ द लेन जो बना रहे हैं। यस, दैट लेन इज हैविंग ऑन बोथ साइड, इन ओलंपिक साइड द लेन इज हैविंग अ हुक टेंशनर, उसमें टेंशन आप क्रिएट करते हो, उसके ऊपर 2 लोग बैठ जाते हैं, 3 लोग बैठ जाते हैं, और वो उसको पूरे सालों साल होल्ड करती रहती है, क्योंकि पानी के अंदर है और इट्स अ वेरी हैवी सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो जो टॉर्शन डला होता है उसके अंदर वो उसको पुल करता होगा, दैट्स व्हाई यू नीड कंटिन्यूसली पुल करता रहता है। राइट। जितनी आपने स्ट्रेंथ उसके अंदर डाल दी वो कंटिन्यूस उतने ही पुल पे रहेगा वो पूरा पूरा। और ये प्रोडक्ट जो है, मतलब स्विमिंग पूल के अंदर या तो कोई भी चीज़ प्लास्टिक पे यूज़ होगी, जैसे लेंस जो होती हैं पीवीसी की, उसके अंदर जो वायर्स होते हैं 304 SS के होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी नट बोल्ट एंकर MS का नहीं होगा, ओनली 304। आप किसी भी केमिकल के साथ खाली MS को छोड़ के हर चीज़ रिएक्ट करती है। Right. जितने भी केमिकल हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ हाई ग्रेड ऑफ मल्टीपल केमिकल्स, लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दीज आर द केमिकल विच आर रेगुलरली यूज इन द पूल। मतलब सुनने में नाम बहुत भारी लगते हैं, लेकिन कई केमिकल्स ऐसे हैं जिसको आप सुन के बोलोगे यार ये तो बहुत कंफर्टेबल है, ये तो हम बचपन में यूज करते थे। एल्यूमिनियम सल्फेट इज एलम, एलम इज कॉल्ड फिटिकी। यस, फिटिकी। तो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ, सबसे पुरानी टेक्निक है पानी साफ करने की। पानी साफ करने की, पानी को मतलब नॉर्मली हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो पानी को फाड़ देता है, जितने भी डबीज है उसको सबको सेटल कर देता है। सो हेवी पार्टिकल सेटल डाउन, स्कूल में भी पढ़ा है हमने, ये इनफैक्ट टेस्ट भी किया हुआ है हमने केमिस्ट्री लैब में। इवन दिस सीजन वी हैव फेस्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज। एलम क्या करता है कि सारा तो काम करता है, सेटल कर देगा, लेकिन वो साथ में पीएच को भी लो करता है। राइट। एंड दिस सीजन जो रेन हो रही है, हमारे साथ फर्स्ट टाइम दिल्ली में एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये पीएच को लो ही करती जा रही है। राइट। सो हमारे पास जितना भी एलम का स्टॉक है हमने यूज ही नहीं किया, हम यूज ही नहीं कर सकते। वी नीड अ दैट्स बिकॉज़ ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द रेन। इट्स नॉर्मली गेटिंग एसिडिक ओनली। हर बारिश जो है वो पीएच को 0.5 या 0.1 गिरा देती है। तो चैलेंज ये है कि पीएच को हाई रखना है, पीएच को हाई रखना है। जितने भी हमारे पास केमिकल्स हैं पीएच को लो करने के, पूरे सीजन यूज नहीं हुए हैं। इस बार नया चैलेंज ये है कि पीएच को हाई रखना इज अ चैलेंज। वाओ। बस अगर ये टेस्टमेंट नहीं है टू द एयर क्वालिटी एंड एवरीथिंग इन आवर सिचुएशन, स्पेशली इन दिल्ली, तो और क्या है। एनी अदर मटेरियल्स दैट यू थिंक आर
vital for the creation of a swimming pool. Of course, you mentioned. So जो drains बनती हैं, they're RCC या कोई metallic gutters होते हैं उसमें? They are completely RCC. RCC. Metallic जो GI gutters या कुछ? जो basically ये बनते हैं पूरे के पूरे ग्रीटिंग चैनल बनते हैं, ड्रेन चैनल भी से these are called ड्रेन चैनल. इसके ऊपर जो ग्रीटिंग्स लगती हैं ये या तो PVC लगती हैं या फिर SS304 लगती हैं. Anything that is non-reactive to water and can sustain for long. So main बात तो वही sustainability की है, लंबे समय तक चलने के लिए durability. हमने जहाँ पे भी अगर कॉस्ट कटिंग में किसी ने भी अगर कोई प्रोडक्ट जो है MS का लगा दिया, विदिन अ मंथ यू विल कम टू नो कि ये MS है एंड इट विल स्टार्ट रस्टिंग और वो इम्पैक्ट दिखाएगा पूरा पूरा. वो तो छोड़ देगा, जगह भी छोड़ देगा अपनी, और वो आइडिया लग जाता है उसका. तो सर स्विमिंग पूल के तो एलिमेंट्स आपने बता दिए. द सर्फेस राइट अराउंड इट, द वुडन डेक, जिसे वुडन डेक कहते हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली वुड इज इट? मतलब वो डेकिंग तो आजकल अलग अलग टाइप के मटेरियल्स कह रही है. फॉर एग्जांपल WPC में भी इट माइट बी हार्ड PVC या UPVC, उस तरीके के डेक्स बनने लगे हैं आजकल. मेल फीमेल जॉइंट ऐसे वो जुड़ते जाते हैं, वो पूरा डेक क्रिएट हो जाता है विद इन लाइक अ डेज टाइम. दे नॉट यूजिंग वुड एनी मोर एनीवेयर नियर बाय, राइट? कॉन्क्रीट एक्सपोज नहीं छोड़ सकते क्योंकि स्लिपरी होता है. टाइल एक्सपोज नहीं छोड़ सकते क्योंकि स्लिपरी होता है. सो द डेकिंग इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग पीपल नॉट टू स्लिप. इसमें बेसिकली अगर सबसे ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबल तो टाइल्स एंड ग्रेनाइट है. ओके. जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हो. ग्रेनाइट तो बट ग्रेनाइट का जो फॉर्म आता है, जो कि अगर आप दिल्ली शेड्यूल रेट देखेंगे DSR गवर्नमेंट का, उसके अंदर ग्रेनाइट का एक फॉर्म नहीं है जो हम बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड सैंड ब्लास्ट. 100% सैंड ब्लास्ट. जहाँ पे कॉमर्शियल पूल हैं जिस पे डेक बनाए, जिस पे से लोग डाइव करते हैं, राइट, दैट इज अ प्लेटफॉर्म विच शुड बी हायर देन द पूल. उस पे हम बेसिकली ग्रेनाइट यूज़ करते हैं बिकॉज दैट इज अ वेरी रिफाइंड सरफेस. And after getting a 100% sand blast, granite become a resistance level 15. Oh wow! And resistance level 15 is very high in terms of resistance. Normally आप किसी भी ब्रांड की टाइल देखेंगे R13 और R14 से ऊपर की आपको टाइल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है. इधर you have to get it customized, जिसमें रेसिस्टेंस लेवल 15 आता है. और ये उस इंडस्ट्री के लिए आते हैं जहाँ पे आपका ऑयल बहुत ज़्यादा फ्लोर पे है. लेट्स से कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, राइट, या फिर इस तरह की इंडस्ट्री हैं जहाँ पे नॉन काट देना इसको, ऐसी इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे आपको नॉन स्लिपरी शूज़ पहनने पड़ते हैं, स्पेशली जहाँ पे ऑयल का फ्लो है या केमिकल का फ्लो है कंटिन्यूस, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल 15 की टाइल्स लगती हैं. तो जहाँ पे आपने ग्रेनाइट को लेवल 15 कर दिया, इट्स इक्वली गुड लाइक अ 15 रेसिस्टेंस लेवल ऑफ द टाइल. और दूसरी चीज़ आती है कि FRP यूज़ हो रहा है बहुत जगह, राइट, PVC यूज़ हो रहा है बहुत जगह. बहुत जगह पे अपना म्यूनसिपल वेस्ट की टाइल्स आ रही हैं आजकल, जो कि इक्वली गुड इन रेसिस्टेंस लेवल. डिपेंड करता है आप लगाना क्या चाहते हैं. और जहाँ पे आप ये छोटे पूल्स की बात कर रहे हैं जो कि हाई लग्जरी में है, जहाँ पे वो डेक बनता है विच लुक लाइक PVC डायरेक्टली, विच लुक लाइक अ वुडन बट इट्स अ PVC, एंड उनकी भी इक्वली लाइफ रहती है. और उनका एरिया बहुत छोटा रहता है क्योंकि ये डेक बनते हैं पूरे के पूरे MS स्ट्रक्चर पे. जो भी आप बैकयार्ड में पूल बनाते हैं, टेरेस पे पूल बनाते हैं, इनका जो आउटर लेयर का स्ट्रक्चर होता है वो MS पे होता है कम्प्लीटली. MS की भी अपनी लाइफ है. मतलब स्टील में लोग कॉस्ट कटिंग पे जाते हैं. ऑल्दो व्हेन यू आर बिल्डिंग अप अ वाटर बॉडी, द अंडरग्राउंड मटेरियल आल्सो शुड बी स्टील, बट वो स्टील पे जाते नहीं है. MS का स्ट्रक्चर बनता है, उस पर डेकिंग कर देते हैं. अब कितना यूज़ हो रहा है कितना नहीं यूज़ हो रहा है वो डिपेंड करता है यूज़ के ऊपर. एग्जैक्टली, बात तो सही है. आई थिंक वी pretty much covered all the materials जो आसपास यूज़ हो रहे हैं या स्विमिंग पूल के अंदर यूज़ हो रहे हैं. We've talked about filtration systems. In fact, there are handlebars to support people. It's all SS 304 लग रहा है. In fact, I think वो diving के लिए भी जो structure बनता है, that's mainly RCC, and then it's just a board which is used. Fiber, complete fiber board होता है वो. Any other aspect that you would like to cover of the swimming pool? I think हमने मोटा मोटी तो सब कुछ कवर कर लिया, कुछ रहा तो नहीं है शायद. इसमें बेसिकली पीपल आर नॉट अवेयर कि ब्रांड कौन कौन से आते हैं. ओके, लेट्स से कि वी काउंट कि एवरी ब्रांड इज अ स्विमिंग पूल ब्रांड. स्विमिंग पूल में जो लीडिंग इंडस्ट्री में है वो एस्ट्रल है. ओके, एस्ट्रल इज हैविंग ओन यूनिट फॉर पाइप्स एटसेट्रा. नो, दिस इज अ डिफरेंट कंपनी. एस्ट्रल विच इज in India, its office is based in Bangalore. Okay. But Astral Pools. Okay. Astral Pool is a different brand. Then number 2 is somewhere around Pantier. Then there is a brand called Emox. These are 3 leading brands. Rest These are brands of what? Of complete swimming pool accessories. Oh, अच्छा. Filtration, UV, anything. अच्छा. There are certain companies as well, those who are specialized in so making. They make everything to help you create a swimming pool. Yes.
एक्सेप्ट द सिविल वर्क। सिविल वर्क होने के बाद सब कुछ ऐसी कंपनी से मिल जाएगा। एंड टू एंड सॉल्यूशन इनके पास, आपको ग्रेडिंग भी चाहिए वो भी मिलेगा, कॉर्नर्स भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। इंटरेस्टिंग। जैसे जॉनसन जो है टाइलिंग से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। कंप्लीट सॉल्यूशन इट मींस दे हैविंग हैंडमेड टाइल्स एज वेल, जो ओलंपिक साइज पूल पे डेक के कॉर्नर पे लगती हैं। राइट। ईच पीस ऑफ टाइल कॉस्ट समवेयर अराउंड 2000 रुपीस। It's a very small tile, but made in Italy, right, and meant for swimming pool only. So in this condition, Astral, Pentier, and Emox are the brand. Rest there are multiple brands. Those who are, पता ही है आपको कि चाइना से आ रहे हैं, कोई स्टैंप लगा रहा है, कोई बेच रहा है, मेड इन यूरोप बोल रहे हैं। right. कुछ ब्रांड ऐसे हैं, जैसे यूवी की बात करें तो यूवी में देयर इज अ इंडियन ब्रांड विच इज कॉल्ड अल्फा। दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब कॉमर्शियल यूवीज की। हीट पंप्स की बात करें, हीट पंप्स में माय वन ऑफ द फ्रेंड इज हैविंग अ कंपनी विद द नेम ऑफ सेल्सियस। They are leading in the heat pumps as well, because we were the largest purchaser of their heat pumps and install it. It's a robust system. None of the Chinese system can stand in front of them. It's a Indian made system which is the best of the quality components. Let's say there is a Copland or Danfoss compressor, Siemens or Schneider components. So completely best of the assembly line. Right. And they work non-stop 24/7. Right. And we have installed somewhere 5 or 7 years back. We have not received a single complaint. Right. And guarantee on the paper that these are going to reach to a temperature of this level. Right. Wherever there is a failure, there is a failure in terms of understanding of heat loss. There is a science behind the heat loss, how the heat normally lost from the pool. जहाँ पे installation के बाद ऑपरेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि someone have given a product to you, आपको बेच तो दिया है, लेकिन उनको खुद ही आइडिया नहीं है कि यार चलेगा कैसे और पानी गर्म कैसे होगा। Exactly. इसमें कहाँ इंसुलेशन करनी है। मैंने तो बहुत से पूल देखे हैं जो हीटेड हो रखे हैं, उसमें इंसुलेशन ही नहीं है, बिकॉज उसके पीछे जिसके भी माइंड था उसको यही नहीं पता था हीट लॉस होगा कैसे, उसको रिकवर कैसे करना है। हम कई जगह पे जो रेक्टिफिकेशन करते हैं ओल्ड पूल्स का, हम उसमें ऊपर से भी लाइन सप्लाई क्रिएट करके पूरी की पूरी और उसको इंसुलेट करके क्रिएट कर देते हैं। दैट इज़ अ सॉल्यूशन जो हमने वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल सन सिटी स्कूल सेक्टर 54 में भी किया हुआ है। कंप्लीटली ऊपर से ओल्ड पूल में स्ट्रक्चर में सिस्टम किया हुआ है। देन इट कम्स टू अ इंडोर पूल में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इंडोर पूल या तो आरसीसी के अंडर होगा, अगर होटल के अंदर है या बैकयार्ड में है या फिर बेसमेंट में है तो आरसीसी के अंदर है। अदरवाइज अगर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं देन इट शुड बी पीईबी स्ट्रक्चर विथ यूपीवीसी शीट्स, अगर आपको किसी अच्छे ब्रांड की मिलती हैं। बट यूपीवीसी शीट में बहुत ज़्यादा कोई मार्केट लीडर नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो वी नॉर्मली से कि गो फॉर द एमएस शीट डायरेक्टली, मेट्रो शीट और गैल्वेनाइज शीट विच आर विद गुड ब्रांड। किसी भी ब्रांड को लगाइए। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वी टॉक अबाउट कि डोंट गो फॉर इवन पीईबी, गो फॉर अ प्रोफ्लेक्स स्ट्रक्चर डायरेक्टली। ओके। प्रोफ्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज़ विदाउट एनी सपोर्टिंग सिस्टम इन बिटवीन, इंटरलॉकिंग सिस्टम। आप अगर देख रहे होंगे यशोभूमि जाने से पहले जो भी अंडरपास बने हुए हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है मार्केट में, इसकी अडोप्टेबिलिटी बहुत लेस है। रीज़न ये है कि आदमी को ना ये डर लगता है जो स्ट्रक्चर बनवा रहा होता है, यार ये बिना सपोर्ट के स्ट्रक्चर कैसे खड़ा रहेगा। राइट। बट दैट इज डिजाइन टू बिल्ड और रिटेन ऑन द सेम वे, एंड दिस स्ट्रक्चर हैज बीन हैविंग अ वेरी लॉन्ग लाइफ इन द फॉरेन कंट्रीज। लेट्स से कि जहाँ पे एंकर्स बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स के एंकर बने हुए हैं, प्लेन्स के एंकर बने हुए हैं, this structure can support 35 meter of span without any support. Nice. In width. Length में तो आप इसको किलोमीटर्स तक बना लीजिए। Right. So that's the best system which is going on. Is it similar to what UHPC is? Ultra high performance concrete भी इस तरीके का आ गया ना। So basically reinforcement नहीं होती उसके अंदर, but the strength and the property of that concrete itself is something that can last you like 100 years. M100 ग्रेड, M200, M150 मतलब क्रेजी हो गया अब तो खैर। एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजिस्ट जितने भी इंडिया में हैं, दे आर वर्किंग इंसेसेंटली ऑन इट। दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। इन फैक्ट UHPC की वन ऑफ द एप्लीकेशंस कैन बी दैट लेट्स से इट्स एन ओल्ड बिल्डिंग जिसको आपको रिहेबिलिटेट करना है, आप उसकी छत के ऊपर 1 इंच का UHPC का लेयर बना देते हो। With the mesh? There is no mesh required. There is no reinforcement required. The product itself is such, and tech is available. People are able to do it, and you do just that. It's like a protection film for like next 50 years. जादू है वो। So it's protection from heat or protection from heat and wear and tear ना, because durable इतना है, and plus UHPC के उसकी properties ऐसी हैं कि उसके अंदर shrinkage cracks ये वो जल्दी से नहीं बनते। It is being developed in such a big way, और
कई लोग हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, एंड आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग अ लॉट ऑफ दीज जेंटलमैन रिसेंटली. बहुत तरीके से यूज़ हो रहा है, एंड आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी प्रॉमिसिंग व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ इट. Okay, I'm gonna make a statement. You tell me if it's a myth or a fact. Only the rich people can afford a pool. Is it a myth or a fact? It's a myth. It's a myth. Myth. तो फिर ये अल्ट्रा लग्जरी करके बेचते हैं लोग तो इसको. Why doesn't everybody have it? Let's say कि BMW, Mercedes or Audi is not a luxury anymore now. Anyone who's earning in the six figures can afford these cars. Okay. So you're saying upper middle class है? Same way, it's not a cup of tea for the middle class, but not for ultra rich people as well. Ultra rich can afford anything. It may be a yacht as well, it may be a fighter plane as well. Exactly. So here the pools start basically from around 4 to 5 lakh rupees now. Okay. Yeah, you don't expect that you need a jumbo size of pool, but when it comes to a pool or jacuzzi, that can be start from 4-5 lakh rupees itself only. When the people are talking about backyard pool or basement pool, so let's say कि we were installing one of the pool for 10 by 20 feet, 10 feet width, 20 feet long. It was costing 15 lakh rupees only. With all the systems, all the high-tech technology of counter current system, with the fountains as well, cascades as well, everything. So that is very cheaper in terms of providing a solution plus installing. Installation itself take a week or 10 days. हाँ सर, फर्ज करिए एग्जिस्टिंग टेरेस पे बॉल पार्क 20 बाय 12 या 20 बाय 15 300 स्क्वायर फीट का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है. अगेन आई एम नॉट बिल्डिंग द स्ट्रक्चर. आपने डिस्कस किया था ना, यू टोल्ड मी अबाउट FRV pools एंड मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स, एंड समबडी वांट्स टू बिल्ड दैट. व्हाट 300 स्क्वायर फीट में क्या खर्चा आएगा आपके हिसाब से? लेट्स से 20 लाख रुपीस. 20 लाख रुपए लगेंगे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग योर डेक एंड एवरीथिंग. फिल्ट्रेशन सिस्टम ये वो सब लग जाएगा. Pool volume is very less, so filtration system will be also smaller. Not very. Let's say कि if we are having a Olympic size pool, उसके filtration system बहुत expensive आते हैं क्योंकि jumbo systems होते हैं. Right. छोटे pool के साथ जिसमें 20,000 30,000 लीटर ऑफ वाटर है, उसका सिस्टम वैसे ही स्लो मतलब शॉर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा. इंटरेस्टिंग. एंड आपके यूजेस उतने नहीं रहते हैं. फिल्ट्रेशन सिस्टम की लाइफ भी उस पर डिपेंड करती है कि आप यूज़ कितना कर रहे हो. यू आर गोइंग टू यूज़ बीइंग अ फैमिली, दिन में एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, दिन में भी नहीं होगा वो, कभी कभी होगा. इट्स जस्ट अ बॉल पार्क फिगर दैट आई एम सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट. एंड व्हेन यू आर डूइंग फार्म हाउसेज, यू आर डूइंग प्राइवेट पूल्स, इज देयर लाइक अ पर स्क्वायर फीट सॉर्ट ऑफ एन एवरेज दैट आई कैन थ्रो आउट टू द पीपल, से कि बॉस इतना खर्चा आता है? व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वालिटी, देन यू कैन से इट स्टार्ट समवेयर अराउंड 1500 to 1800 रुपीस स्क्वायर फीट. ऑल सिस्टम्स इंक्लूडेड. या मिनिमम साइज कितना मानूं पूल का आपके हिसाब से? मिनिमम साइज का आज के टाइम पे कोई साइज ही नहीं है. पीपल नॉर्मली, सर ऐसा नहीं होता ना, अगर कोई कहता है मुझे तो 10 बाय 8 का प्लंज पूल चाहिए, पीपल तो नॉर्मली फिर तो वो कॉस्ट नहीं आएगी ना. अगर आप FRP की बात करें, FRP में जैसे 5 बाई 5 के पूल आते हैं विच आर फॉर द सिटिंग पर्पस. इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल, इट्स अ काइंड ऑफ जकूजी रिलैक्सिंग पूल. अब उसको पूल में स्पेसिफिकेशन में कितना बढ़ाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ में और विड्थ में. FRP 40 फीट तक भी आते हैं लेंथ में. 40 फीट इज वेरी बिग साइज. एंड इन ग्राउंड पूल की बात करी जाए, कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए, कोई भी साइज बना लीजिए, 1500 रुपए के करीब के एवरेज. कोई भी साइज बना लीजिए, कोई भी साइज बना लीजिए. फ़र्क ये होता है जब आप कमर्शियल पूल पे जाते हैं, आप फार्म हाउस के पूल की बात कर रहे हैं, फार्म हाउस के पूल का स्ट्रक्चर और कमर्शियल पूल का स्ट्रक्चर दोनों बहुत डिफरेंट होता है. राइट. वहाँ पे आपने 50-100 लोगों को एक साथ एंटर कराना है. उनका लोड, उनका मूवमेंट जो है वो बेयर करना है. उसकी रीइंफोर्समेंट, उसका कंक्रीट और इसकी रीइंफोर्समेंट और इसके कंक्रीट में बहुत फर्क आ जाता है. ये कस्टमाइज पूल बनते हैं, एक तरह से बहुत छोटी सी नीड होती है. राइट. मतलब कहीं भी बात करें तो पीपल आर ओके विद द 5 लाख रुपीज़ टू 20 लाख रुपीज़, डिपेंड कि किसको क्या बनाना है. जैसे जैसे आप इक्विपमेंट ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ऐड करते जाएंगे, वो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी. 5 से 20 लाख के बीच में एक प्राइवेट पूल इन अ फार्म हाउस इज इजीली डूएबल डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी दे आर गोइंग फॉर एंड द साइज ऑफ द पूल. राइट. साइज ऑफ द पूल, मतलब ये है स्टार्टिंग रेंज कहीं पे. राइट. कि आपको लगता है कि 5 फीट विड्थ बना देते हैं और 20 फीट लंबा बना देते हैं. वो डिपेंड करता है कि आप लेन में स्विम करना चाहते हो. दैट्स लाइक अ लेन. हाँ, वेयर यू जस्ट डूइंग. यू वांट अ काइंड ऑफ स्क्वायर पूल जिसमें आप सिटिंग चाहते हो कि उसमें 8 to 10 लोगों की सिटिंग हो, जकूजी के साथ में, ड्रिंक्स के साथ में, दे कैन एंजॉय द पूल एज वेल. दैट इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे आपके इनपुट बढ़ते जाएंगे ना, सिटिंग पर कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. देयर इज अ वन टैक called a swimming pool and filtration. There is another tech which is called counter current system and UV system. There is another tech which is called a jacuzzi. जकूजी के साथ पंप के और उसके बबल्स के पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, वो कॉस्ट बढ़ाते चले जाते हैं. सो मैं अगर एक
एक्सट्रीम हाई रेंज चला जाता हूँ तो हम 4,000 से 4,500 रुपये पहुँच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरी easily not 4000 से 4500 you can cross to 8000 as well. ओह It depends ki what you want to let's say ki there is a semi precious stone. One of my friends is doing semi precious stone work. If someone is having a capacity to install the semi precious designer stone inside, then the cost is going to be super high. राइट Let's say if someone need a kind of stone which is metal electroplated, brass or kind of statue near to the pool which is throwing a water outside in the pool. लोगों की क्रिएशन जो है, जो इमेजिनेशन है ना, वो इस तरह की जाती है. फार्म हाउसेस के पूल पे कैस्केड एंड फाउंटेन इज ओल्ड टेक्नोलॉजी. बहुत ईजी है, बहुत कॉमनली लोग लगा रहे हैं. बोल्डर्स लगा दिए, बना दीजिए वहाँ पे फाउंटेन, कैस्केड बना दीजिए, नॉर्मली बिल्टअप आते हैं बिल्कुल. जहाँ पे क्रिएटिविटी आती है ना, दे नीड अ स्टोन वर्क. स्टोन का कोई स्टैचू है जिसके मुंह से पानी आ रहा है, जिसके साथ में ऑक्सीडेशन होकर पानी आ रहा है. ऑक्सीडेशन जैसे आप करेंगे, यू हैव टू ऐड द बबल्स इन द वाटर. हाँ, वन मोर थिंग, पूल्स के अंदर ना ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है विदाउट ऑक्सीडेशन, व्हेन देयर इज अ लेस ऑक्सीजन इन द वाटर. ओह ओके. ऑक्सीजन शुड बी ऑलवेज देयर इन द वाटर. जैसे ऑक्सीजन नहीं होगी, वाटर शुड स्टार्ट बिकमिंग अ डेड. जैसे एक्वेरियम के अंदर हम ऑक्सीजन लगाते हैं, बबल्स मशीन बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल. तो वो पूल में यू थिंक इट शुड पूल में यूज नहीं होता, बट पूल में सिस्टम होते हैं कि अगर हम वॉल्स को लीक कर देते हैं और लूज कर देते हैं तो उससे वो एयर लेना शुरू कर देते हैं. इट्स क्रिएटिंग नेचुरल सॉर्ट ऑफ अ थिंग. उसके अंदर वो बबल्स आ जाते हैं. That is how you oxygenate water in a very simple way. When in a deep pools, I faced a challenge which one of the pool, APJ Noida. It's a 11 feet deep pool. And there was a problem that there was a lot of CO2 in the water. Right. So in that condition, you have to remove the CO2 from the water and you have to oxidize the water then. Oh. That's a technique which I think rarely people knows how to remove a CO2 from the water. You have to do the chemical process in the bottom of the pool. Okay. Yeah. So you have to inject the chemical through the pipe inside the bottom of the pool. When the chemical will lie down on the floor, it will start reacting and you will feel there is a CO2 coming out of the pool. You can see there are small tickles and bubbles are coming out. That's the way how the pool treat. Pools are very tricky. First, आप पहले उसका CO2 का हटाते हो, and then it goes to the filter and then the water purifies itself again. Is that what it is? CO2 removal of CO2 is a different process because तो chemical reaction आप कर रहे हो because you're placing a chemical at the pool bed. Yeah. है ना, और उसके बाद फिर वो पानी रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, धीरे धीरे वो आपका CO2 emit होएगा उसमें से. That's the process and time that it will take. But for it to become fit for use again, then the whole filtration process comes in place again. Filtration is a continuous process. It's a continuous process. Let's say while that reaction is also going on. And it depends ki what kind of water source you're having. That school is having a problem that their water is having a very high level of iron and copper. So these properties make the pool water very unique in terms of chemical treatment. Let's say if once you have treated that water and you are adding a new water which is not chemically treated, it will directly create a green line in the pool, just like a snake. So you have to treat the water first before adding it to the pool. That's the complexity of that pool. Right. Because there is a big nala near to that school or pool. So the groundwater chemical properties has been already changed. Contaminated. Sir, आपको पता है मुझे आपके जैसे एक्सपर्ट्स क्यों अच्छे लगते हैं? Because आपका अभी जो वर्क ऑफ the field of work that you have, it's very specialized. Now we have been talking about it for an hour and a half closely, maybe more. अभी भी हम शायद पूरी बात डिस्कस नहीं कर पाए. Am I right? Yeah. So when you're looking at fields like HVAC, you're looking at a swimming pool construction and the tech around it, this discussion in itself is a whole book or maybe 3 books or 5 books information. You know, there's a lot of knowledge out there और ये tech evolving है क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट है. ये एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट है, इंटीरियर डिज़ाइन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट है. इसीलिए सब अपने आप में अलग अलग फील्ड्स हैं. अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट है, बिल्डिंग की प्लानिंग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, यू आर बेसिकली डिफाइनिंग अ सेपरेट इकोसिस्टम completely detached from the entire real estate project जो बना है. So that is why I like experts like you and talking to you guys, and that is where we draw our knowledge completely from champions like you. I think we are going to close it here, but I will leave it open to you guys if you have any questions, because अब एक नया टॉपिक आज हमने पकड़ा आप सबके लिए. This is a unique field
which some of you might know about, most of you don't. I definitely did not. This was Mr. Gyanendra Tewatia. He is a champion at his art, as you already have found out. If you have any questions, write to me at India's #1 construction podcast @gmail.com. Follow me on Instagram at India's #1 construction podcast and message me there. Or you can comment when the video is up. You can comment in the reels which we will post very soon. Audio पे अब हम 4 platforms में हैं: Amazon Music, Apple Podcasts, JioSaavn, and our age-old Spotify. So you can follow us on whichever platform you prefer. YouTube Zindabad, सब कुछ वहाँ already post होगा. So yeah, looking forward to hearing your queries and have a great day.